TPR. Hi everyone, welcome to another episode of the TPR Pod. This is episode 133. Today's guest, Amir Bhagat, a legendary name in the Pakistani and perhaps more specifically the Karachi YouTube creator community. Amir Bhagat is on the show to talk about a whole bunch of things, including his early years of getting involved with the creator community, how he came to know people like Irfan Janejo, Muru, and so on, his early interest in all things creative, in all things around the technical side of creativity. He's very clear in saying that he is not a creative person. He talks about why he believes that. We talk about his legendary edit meetups that used to happen in Karachi, where you'd show up with the chocolate bar as your price of entry and learn a lot of details about editing, content creation, meet some inspiring people. We talk about how I Teach stuff came about, what the idea was, how he pivoted towards it during the pandemic, what the plans are for the future. They have a physical space. What are they going to do with it? What subjects they can include in future. His own personal plans. He's launching 2 podcasts. He says what they're going to be about, why he had the idea. Basically, about his motivations, his plans, his interest in educating people in a skill-based format, and where that interest comes from and how he's going to act upon it. Great episode. We finally got around to talking to Amir Bhagat, somebody I used to be calling the godfather of the YouTuber scene because he was always present. Everyone would talk about Amir, but no one was really sure what he did. So we've talked about all that, and hopefully he'll be back on the show sooner than later. So yeah, without further ado, episode 133, Amir Bhagat. खैर चलो, बहुत अरसे बाद मैंने फाइनली ये सेटअप कर ही लिया बिकॉज जब से ये पॉडकास्ट चल रहा है, इफ पीपल डोंट नो, आमिर भगत का नाम जो है वो इस पॉडकास्ट की शुरुआत से, इस पॉडकास्ट पे आमिर भगत नहीं आए लेकिन उनका जिक्र शुरू से है। तो मैंने कहा कि भाई मतलब अब हम इस लेवल तक आ गए हैं कि हम इनसे बात कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। बहुत तुम्हारे यहाँ लेट हो रहा है, बट तुमने आई थिंक सेटअप वेटअप, जरा सेटअप मुझे बताओ, तुम्हारा भी सेटअप क्या है? तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, हाँ जिसको मैंने ऐसे में मैं क्लासेस लेता हूँ ना, ऑनलाइन क्लासेस। तो अगर मैं किसी को वीडियो पढ़ा रहा हूँ, मेरा खुद का कैमरा वेबकैम है, तो फिर वो इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। राइट So I had connected my A7C with the laptop through a HDMI connector, and then there is this light, जो कि of course ये है, then there is this light, and there's another light. सही। अच्छा, 3 लाइट सिचुएशन। यार ऑल फ्यूचर पॉडकास्ट गेस्ट प्लीज आप ये जरा देख लें, इनकी वीडियो इस लेवल पे आना है, वरना मुझे बात नहीं करनी आपसे। बट गुड यार आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट व्हाट यू डू विद आई टीच स्टफ स्पेसिफिकली। लेकिन इस पॉडकास्ट से आप एक हद तक फेमिलियर तो हैं ही, तो मैं सोचा मैं जरा यूजुअल मेरे घर पे पॉडकास्ट हुआ है। हाँ, the first video podcast was in his house. तो बस उसके बाद से, so I guess he deserves to be on this show at this late at night. कि भाई आपने वो हमें जो generosity दिखाई उस वक्त। But yeah, I was very interested कि तुम्हारा scene, क्रिएटिव सिचुएशन का सीन जो है वो तुम्हारा शुरू कैसे हुआ? पहली अपीयरेंस है तुम्हारी, फर्स्ट ऑफ आई एम श्योर रिकरिंग मेनी एपिसोड्स इन द फ्यूचर, लेकिन क्योंकि तुम्हारी पहली अपीयरेंस है तो आई नीड टू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा सीन क्या है। तुम, हु इज आमिर भगत, हाउ डिड ही गेट इनटू द क्रिएटिव वर्ल्ड? भाई creative is not a good word for me. मैं creative नहीं हूँ, basically I'm a very administrative person. कि I want to things get done. ये इरफान ने मुझे कहा कि आप creative नहीं, आप काम करना आता है, कि आप if I want to do something तो वो चीज हो जाती है, वो चीजें हो जाती है, मतलब आसपास। So I'm not a creative person, I'm more than administrative person कि अगर कोई चीज करनी है तो it gets done. और since ये मैं इतना काम करता हूँ पिछले 10-12 साल से, तो creativity कहीं ना कहीं निकल ही जाती है कि भाई कहते हैं ना कि 10,000 hours you have to put in everything. तो इतना टाइम दिया। अभी मुझे पॉडकास्ट करना था, I could have been easily done with the phone or iPad के भाई वो चीज। आई थिंक पिछले पॉडकास्ट इसी तरह होते हैं कि किसी ने भी कोई भी खोल लिया तो, बट इसके यार आई हैव बीन डूइंग ऑनलाइन क्लासेस पेंडेमिक से पहले। तो आई हैव एन आइडिया कि अगर आप
कि अगर अच्छा दिखाना है किसी चीज को तो हाउ डू यू डू इट। तो इट्स जस्ट देयर कि मैंने अपने ऑफिस का कहा कि मुझे पॉडकास्ट है तो जस्ट गिव मी दिस स्टफ, कैमरा, लाइट और ये स्टैंड वगैरह। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बैग बना दिया, मेरे गाड़ी में बैग डाल दिया, हमने मैं गाड़ी से बैग लेकर आया। क्योंकि जब ऑफिस है मेरा, ऑफिस से लगभग 4 महीने पहले से तो मैं यहाँ पे स्टूडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रहा था अपने कोर्सेज और अपनी दूसरी क्लासेस, तो इट्स जस्ट काम हो जाएगा। लेकिन हाउ डिड यू गेट, मतलब तुम बेशक क्रिएटिव नहीं लेकिन तुम क्रिएटिव उसमें घुसे कैसे? लाइक सो मीडिया साइंसेस मैंने पढ़ा एक यूनिवर्सिटी से, और इससे पहले मैं मतलब 4 से 5वीं फील्ड में रही है, मतलब कॉलेज से जो सफर होता है ना कि आप अपनी फील्ड ढूंढने शुरू करते हो कि किस यूनिवर्सिटी में जाना है। तो आई स्विच बिटवीन 5 फील्ड्स, नॉट दैट मैंने पढ़ाई शुरू की थी, मैंने पढ़ाई से सीए की शुरू की थी। अच्छा, बट उससे पहले मैंने डिफरेंट जगह एडमिशन फॉर्म्स दिए। मैंने आर्किटेक्चर के लिए अप्लाई किया था, मैंने कंप्यूटर साइंसेस के लिए अप्लाई किया था, देन मैंने बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई किया था, देन सी एंड देन मीडिया साइंसेस। तो इट वाज नेवर द ड्रीम कि मैं मुझे मीडिया साइंसेस पढ़ना है, मुझे पता भी नहीं था मीडिया साइंसेस होता क्या है। इट वाज जस्ट अनदर डे कि आई वाज बोर्ड विद सीए। मैंने अपना बुक कहा था कि मुझे सीए में नहीं पढ़ना है, उन्होंने कहा बेटा फालतू बैठे हो, कुछ कर लो। तो कुछ भी कर सकते थे, सीए क्यों करवाया, बट उन्होंने सीए करवाया। और एक दिन में क्रिकेट खेल के आया, संडे को अखबार में एड फॉलो, उसमें अखबार में आज तक एक ही पेज पढ़ता हूँ, स्पोर्ट्स पेज। तो उसमें ऐड आया था एक रनस्टिक का, लर्न एनिमेशन और श्रेक का कार्टून बना हुआ था। मैंने कहा यही तो करना है जिंदगी में। और बस एडमिशन फॉर्म भरा, फिर भरते गए और काम करते गए। फिर मैं जब जॉब शुरू की तो मुझे और मजा आना शुरू हो गया इसमें, तो दैट्स व्हाई। जॉब क्या थी पहली जॉब? पहली जॉब बेसिकली आई वाज अ लर्निंग टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटर। ये जॉब थी आगा खान एजुकेशन सर्विस में, जो स्कूल्स है ना, आगा खान के स्कूल्स पाकिस्तान में बहुत सारे, उन्हीं का डिपार्टमेंट लर्निंग टेक्नोलॉजी। सो व्हाट आई वाज डूइंग नेसेसरी वाज के मैं उनकी फैकल्टी जो टीचर्स है उनको ट्रेनिंग दे रहा था कि टेक्नोलॉजी को किस तरह अडॉप्ट करें। उस वक्त गूगल मैप नया नया आया था, उस वक्त जो है गूगल शीट्स थे, पावर पॉइंट, वर्ड और नए नए जो टूल्स आ रहे थे इंटरनेट का, 2008-9 की बात है ये। तो जो नया नया बूम आ रहा था चीजों का, तो उसको किस तरह आप अडॉप्ट करके अपनी पढ़ाई को अच्छा कर सकते हैं। और मजे की बात ये थी कि क्योंकि मैंने उसी स्कूल से पढ़ाई की थी, जो स्कूल था जहाँ पे हमारा ऑफिस था आगा खान एजुकेशन सर्विस का, उसी स्कूल से मैंने ग्रेजुएट भी किया था। तो आई वाज टीचिंग माय ओन टीचर्स। लाइक 4 साल के बाद मैं टीचर को पढ़ा रहा हूँ, तो वो अजीब सा एक एक्सपीरियंस था। सही सही। अच्छा, फिर उसके बाद मेरा तुमसे पहला तारुफ गायबाना हुआ था जब इरफान से जरा बातचीत हुई, और इरफान के भी आने के कुछ टाइम बाद जब एक आमिर भाई का एक जिक्र आने लगा। आमिर भाई वाज अ फैसिलिटेटर ऑफ मेनी थिंग्स। तो वो टीचिंग टीचर्स हाउ टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी और गेटिंग इनटू ये क्रिएटिव जोन जहां मीडिया, ऑडियो प्रोडक्शन वगैरह, ये वाला ट्रांजिशन कैसे हुआ, एंड हाउ डिड यू एंड अप मीटिंग द यूट्यूब क्राउड? सो व्हाट हैपेंड वाज के यूट्यूब तो मैं 2009 से मेरा चैनल तो है। तो जब हम मीडिया साइंस पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटी में, तो हमें डिफरेंट असाइनमेंट्स मिलते थे, वो मैं करता था। और फिर मेरे पास ये था क्योंकि मैंने ना बीच में यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज, तो मैंने बीच में थोड़ा ब्रेक लिया था। और जहाँ मैं जॉब करता था वहाँ पे कैमरा हुआ करता था, साइबर शॉट, सोनी साइबर शॉट, और वो हैंडी कैम। और उस वक्त मेरे में कंप्यूटर नहीं था, मतलब वो समझ लो कितने जमाने पुराने कंप्यूटर था, जैसे पुराने होते थे। तो मैं क्या करता कि मैं ऑफिस में आई यूज्ड टू स्टे लेट, लाइक 3 AM 2 AM, क्योंकि फाइनेंस वाले बैठते थे। तो और स्कूल और सॉरी अपना ऑफिस और मेरा घर जो है ना वो एक रोड ही दूर था, तो मुझे इतना इशू नहीं होता था कि यार चलो खैर हो गई, एक ही रोड तो पार करना है। और फाइनेंसेस वाले भी वही रह जाते जहाँ मैं रहता था, तो साथ चले जाएंगे। और फ्री फूड था क्योंकि वो लोग मंगवाते थे और फिर मैं तो शेयर करता था। सही। तो मैं क्या करता था कि मैं दोपहर में जब सब हम लोग काम करते, मैं कैमरा लेके छत पे जाता था और अपना को शूट करता था, और उस पर रात को बैठ के एक्सपेरिमेंट्स करता था, सॉफ्टवेयर को कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। वो एक स्पार्क जनरेट हुआ। फिर जब मैं ये मैंने फेसबुक में अपलोड करना शुरू किया, 1-2 लाइक्स से मैंने कहा यार मैं तो फेमस हूँ। फिर आई वेंट टू यूनिवर्सिटी बैक, वहां पे जो है क्योंकि एक हमारी फील्ड ऐसी है कि अगर कोई डिग्री नहीं भी है बट यू हैव द नॉलेज, तो यू कैन आल्सो गो फॉर इट। क्या आपको पता है ये बात कि इतनी इरफान ने कौन सा मीडिया साइंसेस पढ़ा हुआ है। तो वहां पे जो है जब मैंने प्रैक्टिकली करना शुरू कर दिया, मैं ऑलरेडी कर रहा था, मैं थ्योरी पढ़ा रहा था, अच्छा क्लैरिटी मुझे होती जा रही है। स्टार्टेड टीचिंग मोर स्टूडेंट्स, क्या इसको यूं कर सकते हैं, इसको यूं कर सकते हैं। वहाँ टीचर की नजर में आगे कटे ये तो हमें बच्चों को पढ़ा रहा है, तो टीचर असिस्टेंट बनाया मुझे। फिर मुझे क्या किया कि वहाँ पे हमारा होता साउंड स्टूडियो होता था,
तो वहां पे जाके मैंने केबलिंग समझना शुरू कर दी कि कौन सी केबल किस में जाती है, क्योंकि बहुत सारी केबलिंग होती है, साउंड में मिक्सर्स होते हैं, फिर आपके जो पैनल्स लगे हुए होते हैं, मेरे नाम याद नहीं आ रहा, वो होते थे। तो मैं वहां पे आके केबलिंग सीखने शुरू कर दी। तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास यूनिवर्सिटी के साउंड की चाबी होती थी मेरी जेब में। कुछ भी मसला होता था, बिकॉज वो टीचर्स हेजिटेंट होते बच्चे बात करने के लिए, तो हमें भाई आप बता दें, हमें भाई सिखा दें आप। तो वो एक प्रोसेस चलता रहा वहां पे। तो वहां से फिर मैंने जो है ना अपना आपको जरा एक्सप्लोर किया कि अच्छा ये चीज होती है, एंड यू लर्न वेरी मच फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक। तो मेरी क्लास में अगर 40 बच्चे तो 40 बच्चे गलतियां कर रहे, तो आई वाज लर्निंग फ्रॉम इट बिकॉज आई वाज आल्सो टीएल। तो मुझे बड़ा सीखने का मौका मिला। फिर यूट्यूब में ऐसा हुआ कि मुझे वीडियो मेकिंग का बड़ा शौक था, इक्विपमेंट बहुत सारा था। तो इरफान की एक बार स्टोरी आई थी कि मैं खुलदार जा रहा हूँ, अगर किसी को चलना है तो चले, मुझे ड्रोन की सर्विसेज चाहिए, आई कैन आस्क मूव बाय ड्रोन बट आई कैन नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई बंदा आए, ड्रोन उड़ाए, मुझे डेटा दे, मेरा डेटा ले, और हम साथ काम करते हैं। ये डाली उसने स्नैपचैट पे उस वक्त, और मैं स्नैपचैट पे था भी नहीं। मेरे किसी दोस्त ने मुझे फॉरवर्ड की, वो बलूचिस्तान में रहता है, मैं उसी वक्त रिसेंटली बलूचिस्तान से ड्रोन उड़ा के आया था। तो उसने कहा ये जुनेद जो है, इरफान जुनेद जो नया जो है वो यूट्यूबर है, आप इसके साथ काम करें, आपको अच्छा लगेगा। तो मैं ट्राई करते हैं। मैंने स्नैपचैट इंस्टॉल किया, आईडी बनाई, और फिर मैंने उसे मैसेज किया, उसने मुझे अपना नंबर मैसेज किया। उस वक्त इरफान में सबका नंबर बढ़ता था क्योंकि इतना वो फेमस था नहीं। तो हमने नंबर एक्सचेंज किया, और मुझे इरफान भी बता रहा है कि मैं जो उसके ना वो क्या कहते हैं, मैं बहुत बातें करना शुरू किया, मैंने ये काम किया, ये काम किया, मतलब ना सर पकाने शुरू हो गया उसका, इरफान का। ये फिर हम ट्रिप में साथ के, वो खुद का ब्लॉग, पहला ब्लॉग यूट्यूब में भी मौजूद है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई मेट इरफान इन रियल लाइफ। राइट। फिर जब हम डेटा देने गए तो वी आल्सो लिव वेरी नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर ना। तो वी स्टार्टेड मीटिंग ईच अदर कि यार ये चीज हो रही है, ये चीज हो रही है। फिर जब हमजा का यूट्यूब का सीन आया, तो इरफान रिकमेंडेड मी कि आप आमिर भाई उसको इरफान हमजा को एडिटिंग सिखाएं। तो शुरू के 3 ब्लॉग तक हमजा सुबह शाम दिन रात मेरे घर पे होता था। और जब हमजा है तो इरफान भी आ रहा है, तो इसी तरह वो दोस्ती बढ़ती गई। और फिर जब इरफान के ब्लॉग्स आने शुरू हुआ, तो इरफान तो बाकी लोग भी देखने शुरू हो गए, और इसी तरह के करके फिर वो यूट्यूब का स्पेस बनते चले गया। सही। तो अच्छा, इस बिफोर वी गो ऑन टू नेक्स्ट थिंग, बीच में यूट्यूब बैन कब हुआ था पाकिस्तान में? तुम कह रहे थे ना 2009 से तुम्हारा चैनल है। 2012-13 की बात है। तब तो मैं यूट्यूब में था नहीं था, बट आई वाज वेरी मच हर्ट फ्रॉम इट। राइट। हाँ, चलो इस बात पे फिर हम जरा बाद में आते हैं। फिर द नेक्स्ट बिग थिंग जो कि मैंने सुना था फ्रॉम द कराची यूट्यूब हिस्ट्री वाज के आमिर भाई के होते थे एडिटिंग मीटअप्स। और एडिटिंग मीटअप्स पे अक्सर ये नए नए यूट्यूब सेलिब्रिटीज भी आते थे। बहुत से लोग उन सेलिब्रिटीज को देख के आते थे, फिर बहुत से लोग उन सेलिब्रिटीज की वजह से आने लगे। बट खैर, हाउ डिड द एडिट मीटअप थिंग स्टार्ट? एडिट मतलब इस तरह हुआ कि जब मुझे थोड़ी थोड़ी फेम मिलने शुरू हुई, मेरे कोई 2-2.25 फॉलोवर्स में इंस्टाग्राम में शॉर्ट आउट्स की वजह से, इरफान के स्टोरीज मार रहा हूँ, वो टैग करते आ रहा है। तो क्योंकि मेरी इमेज इस तरह बिल्ड की गई, आप भी मेरे इंटरव्यू इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आई एम अ टेक्निकल पर्सन। मैं लोगों को फैसिलिटेट करता हूँ चीजें करने में। तो लोगों ने कहा कि यार हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में मसला हो रहा है, हमें इसमें मसला, टेक्निकल इश्यूज बहुत सामने आने लगे। तो मैंने कहा ठीक है, फिर सबको बुलाते हैं जगह पे। और मैं एडिट मीटर नहीं था, पहले भी था कि आप आए, मैं आपके लैपटॉप में प्रीमियर इंस्टॉल करके दे दूंगा। तो मेरी दोस्त की जगह थी समसमा पे कराची में, मैंने उससे बात की, फजील मुझे ये करना है। तो उसने कहा ठीक है, सैटरडे को स्टूडियो खाली है, तुम कर लो, लोग को बुला लो। अब 2 दिन पहले जो मैंने कहा थोड़ा मैं अनाउंस कर, ये कर दे, फिर 2 दिन पहले मुझे आइडिया आया, मैंने वो जो एक कोट है जोकर का, इफ यू गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री। तो मैंने कहा मैं फ्री में तो नहीं कर रहा, पैसे कमाने का टाइम तो आ गया। फिर मैंने सोचा कि यार अभी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाने की फीस क्या होगी, 100-200 रुपए। लेकिन वो जो रोड पे होते हैं सॉफ्टवेयर सीडी इंस्टॉल करने वाले, वो भी तो इतने लेते, तो उसमें मेरे फर्क नहीं रहेगा। तो मैंने कहा चलो एक जेस्चर शुरू करते हैं, पैसों की जरूरत नहीं है तो एक जेस्चर शुरू करते हैं, चॉकलेट लेकर आना भाई। क्योंकि चॉकलेट की कोई वैल्यू नहीं है, कोई 20 की चॉकलेट ला सकता है, कोई 1000 की भी ला सकता है। इट्स जस्ट अ जेस्चर टू लाइक वेलकम द कम्युनिटी। तो मैंने ये अनाउंस किया, और फिर लोग आए, 15-20 लोग आए थे पहले मीटर में। मुनीब भी आया था, मुनीब डोनट लेकर आया था, हमजा आया था। तो इस तरह वो शुरू हुआ कि जब मैंने देखा कि लोग आपस में लोग बात कर रहे हैं, इंटरेक्शन हो रही है, चीजें बन रही है, तो मैंने एक और मीटअप किया, और उसको मैंने एडिट मीटअप का नाम दिया। उसमें सॉफ्टवेयर की बात नहीं की, मतलब इंस्टॉलेशन की बात नहीं हुई। बट देन आई स्टार्टेड इनवाइटिंग पीपल। आई थिंक एक ही मीटअप है ऐसा जहाँ पे एक ही जगह पे हमजा, इरफान, मोरू भाई,
सब एक साथ बैठ के बातें कर रहे थे। और जो बच्चे थे उनकी लर्निंग बहुत अच्छी थी। अगर आप मेरी जर्नी देखें तो 2009 से मैं पढ़ाने की फील्ड में हूँ कि किसी ना किसी तरह फैसिलिटेट करते रहो, बच्चों को पढ़ाते रहो। हाँ, तो वो हैपेंड एंड देन आगे चलते रह गए। फिर लाहौर में किया, इस्लामाबाद में किया, कराची में 10-12 किए, फिर रुक गए। अब माशाल्लाह फिर से स्टार्ट हो गए। फिर से स्टार्ट हो गए। हाँ, तो मीटअप्स पे मुझे ये था एक जमाने में कि तुम्हारे मीटअप्स तो चल रहे थे और लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा था, लेकिन एक ऐसा भी शायद टाइम आया था जहां तुम्हारे ये गेस्ट्स जिनको तुम बुला रहे थे, उनका फेम वाज ओवरशैडोइंग द पर्पस ऑफ द मीटअप। मतलब मकसद ये नहीं है कि आप इरफान जुनेजो से आके मिलें, मकसद ये है कि आप सीखें और इरफान जुनेजो भी आपको सिखा सकते हैं अलोंग विद आमिर। तो वो, क्योंकि इसमें ना वो वाली बात आती है, पाकिस्तान में एट दिस टाइम यूट्यूब का कल्चर, यूट्यूब फैंस, पीपल बिकमिंग यूट्यूबर्स, ये सब एक बहुत नई चीज थी जब तुम लोगों ने स्टार्ट किया था, और इरफान भी उसी वक्त रिसेंटली ही सुपर फेमस हुआ था। तो इसका जब ये तुमने होने लगा, तो क्या इसने तुम्हारे डायरेक्शन को थोड़ा अफेक्ट किया? डिड यू डिसाइड कि मुझे कुछ और मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए, या इस बारे में तुम्हारे क्या तासुरात थे एट द टाइम? सॉरी भाई, हुआ कुछ यूं था कि जब ये लोगों को मैं बुलाने लगा तो मीटअप्स, जैसा आपने कहा, बिल्कुल इट स्टार्टेड ओवर शेडोइंग मी, क्योंकि हम्म। मैं फैसिलिटेटर की जगह मॉडरेटर बन गया था। कि हम्म। अच्छा आपका सवाल है, हाँ। ये इनका सवाल है, अच्छा हाँ। ये तो मेरी जो है ना वो चीज जो मैंने शुरुआत की थी कि मैं लोगों को सिखाऊं, वो रुक रहा था वो चीज। और फिर सवालात भी ऐसे होते जाते कि हमें लाइक्स कैसे मिलेंगे, सब्सक्राइबर कैसे आएंगे। बट आई वांटेड अ कन्वर्सेशन टू हैपन कि आप प्रोसेस क्या है इसका, हम्म। कि आप शूट करते हैं तो किस तरह शूट करते हैं, इस तरह क्या करते हैं। फिर वो इट वाज ऑल अबाउट सब्सक्राइबर एंड लाइक्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो कन्वर्सेशन कहीं और जा रही थी जो मैं नहीं चाह रहा था। ये यूट्यूबर मीटअप नहीं था, ये एडिट मीटअप था कि सही। आप एडिट के सही। बारे में बात करें, हाँ। वीडियो मेकिंग के बारे में बात करें। तो वो जो पर्पस था ना वो हटते जा रहा था। इसकी वजह से जो है फिर मैंने कहा यार अगर ये हट भी रहा है और जो मेरा मकसद है पूरा नहीं हो रहा, आगे बहुत सक्सेसफुल थे। अब आखिरी की कुछ मीटअप्स में तो मतलब मुझे याद पड़ता है कि हमने सोल्ड आउट क्या कहते हैं उसका, हाउसफुल का साइंस लगाया था नीचे। इतने लोग आते थे। लाहौर में वी डिड अ हाउसफुल थिंग, इस्लामाबाद में डिड हाउसफुल, जो कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता। इस्लामाबाद में कैन इमेजिन कि हमने मंडे को ही शाम में करवाया। इस्लामाबाद शहर में लोग रात को नहीं निकलते, वहां हमने मंडे को करवाया जो कोई नहीं निकलता। वहां पे हाउसफुल किया था हमने इस्लामाबाद में। तो इट वॉज हम्म। वेरी सक्सेसफुल। बट अगेन जो आउटपुट में चाहा था वो आ नहीं रहा था, तो देन आई हैड टू स्टॉप इट। तुम ये दूसरे शहरों पे खुद जा रहे थे फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग दिस मीटअप, या कोई और बिजनेस पर्पस था और तुमने कहा मीटअप भी हो जाए? यार मकसद कुछ और था। अच्छा। बट मैंने फिर वहां पे लोगों को अप्रोच किया कि मुझे जगह चाहिए, तो दे वर वेरी काइंड इनफ कि उन्होंने कहा हाँ ठीक है बिल्कुल जगह हो जाएगी। बिकॉज एक गैदरिंग ही करनी थी और मेरे को ऐसा, मेरे फाइनेंसिस नहीं थे ना कि मैं हम्म। किसी से फीस चार्ज कर रहा हूँ, तो मैं कोई लोगों को फीस चार्ज कर रहा हूँ तो उनके लिए फाइनेंशियल इनकम हो, वो भी देखे कि हाँ ये चीज हो रही, लोग आ रहे हैं, फ्री में आ रहे हैं और फ्री में सीख रहे हैं। तो इसके लिए मैंने किया था। और अगर वो मांगती भी, जो उनको चॉकलेट दे देता, आदि की आधी चॉकलेट आप रखे, आदि मैं रख लूंगा। यही था। अच्छा। um, तो फिर एक बात अगेन, फिर जो मैं, आई थिंक आई विल ट्राई एंड रिमेंबर टू कम बैक टू इट। ये किस टाइम की बात है? अराउंड ईयर्स कौन सा साल चल रहे थे इस टाइम पे? So basically this was 17-18। 17-18, ठीक है, दैट इज व्हेन द हम्म। यूट्यूब बूम वाज हैपनिंग। तो उस जमाने में एग्जैक्टली। तुम्हारे क्या तासुरात थे अबाउट द काइंड ऑफ पीपल जो कि तुम्हारे पास आ रहे थे? मतलब उनका पर्सपेक्टिव तुम्हें कैसा लग रहा था, उनकी उनकी मतलब अप्रोच तुम्हें कैसी लग रही थी, और उसको देखते हुए तुम्हें क्या लग रहा था कि यूट्यूब का फ्यूचर तुम्हें कैसा लग रहा है इन पाकिस्तान ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स? वेरी पॉजिटिव अल्हम्दुलिल्लाह। आई वाज वेरी हैप्पी विद द पीपल हु आर टर्निंग अप। क्योंकि वो सवालात होते हैं, कुछ सवाल के मैंने को कहा कि वो सब्सक्राइबर बेस्ड हाँ, सवाल थे। हाँ। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी थे अली भाई, व्हिच वाज वेरी इंटरेस्टिंग। क्या हम्म। आप यू कैन फील द कम्युनिटी बिल्डिंग। क्योंकि मेरा एक मकसद ये भी था कि किसी दिन मैनेजमेंट ऑफ इस तरह करूं कि अगर सवाल स्टूडेंट ए से आ रहा है तो जवाब स्टूडेंट बी से आ रहा हो, हम्म। सीख इसमें डाल रहा हो तो इनपुट डी डाल रहा हो, तो कन्वर्सेशन आपस में ही होनी चाहिए। और एक आध मीटअप में तो ऐसा हुआ भी कि आई वाज प्रीटी मच साइलेंट और वो आपस में एक कन्वर्सेशन चल रही थी। एंड दैट वाज द पर्पस, एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाए कि अगर मैं एडिट मीटअप्स ना भी हो तो ये लोग हम्म। आपस में तो काम कर सके, हम्म। कनेक्टिविटी तो हो सके। और ये हुआ। हम्म। चंद बच्चे हैं जो मैं जानता हूँ जो आज तक साथ काम करें, वो मेरे एडिट मीटअप में थे। तो हम्म। कम्युनिटी बिल्डिंग है। और इवन उस वक्त जो है वो काफी लोग इरफान को कॉपी भी कर रहे थे कि यार वो, क्योंकि एक बंदा हमारे हम सब का यही है कि कोई बंदा फेमस होता है तो वी ट्राई टू कॉपी हिम।
कि अगर इसने कुछ अपनाया नहीं, being successful, तो we might also get successful in this. तो कॉपी भी कर रहे थे, but the urge was to do something. अगर वो कॉपी करने से स्टार्ट कर दे तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं जाके अपनी खुद की पर्सनालिटीज में डाल देंगे अपनी चीजों में, बट द अर्ज वाज टू स्टार्ट समथिंग. और मैंने से वो नहीं देखा कि व्लॉगर्स ही बनना चाह रहे हैं. किसी को स्केट्स करने थे, किसी को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस करनी थी. कोई पेरेंट अपने 8 साल के बच्चे को भी लेकर आया था कि भाई इसको भी शौक है सीखने को, देखे आसपास में लोग किस तरह सवाल कर रहे हैं. तो बड़ा अच्छा इन्फॉर्मेटिव सेशंस हो रहे थे. एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड टू रीस्टार्ट इट, नाउ दैट वी हैव आवर ओन फिजिकल स्पेस. क्योंकि अब हमें किसी को जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जो जगह थी वो मेरे दोस्त की जगह थी. अब वो आउट ऑफ अ गुड जेस्चर वो एक जगह दे रहा है, डिफेंस में जगह दे रहा है जहाँ पे एसी भी चल रहा है, चीजें चल रही है, ऑफ कोर्स सबका बिल आता है. तो ही वाज वेरी जनरस विद दैट. नाउ दैट वी हैव आवर ओन फिजिकल स्पेस, आई वांट टू डू इट मोर ऑफ इट नाउ. तो ये अब हर कॉन्वर्सेशन में जब भी होती है ना, आई एम लुकिंग फॉर अ ट्रांजिशन, और अक्सर जो गेस्ट है वो खुद ही ट्रांजिशन में हमें प्रोवाइड कर देते हैं. तो फिर अगला सवाल यही था, although I'll come back to this community and perspective वाली बात hopefully. तो how did this momentum transition into IT stuff? So IT stuff कुछ ऐसा हुआ कि मुझे जो है, देखो कैमरा वगैरह मेरे हमेशा से थे. In fact, when Khulzar thing happened, the first time I met Irfan saw my bag, I had more gear than Irfan. Like दो कैमरा, एक कैमरा था, लेंसेज से, दो GoPro थे मेरे पास, ड्रोन था मेरे पास. बिकॉज मैं खुद की प्रोडक्शन वगैरह भी करता था. आई हैव अ प्रोडक्शन कंपनी एज वेल, ताकि मैं लोगों के एड्स वगैरह प्रोड्यूस करता था. आई हैव मोर गियर देन इरफान. नाउ इरफान हैज मोर गियर देन मी, अल्हम्दुलिल्लाह. तो अब वो हुआ कि जब चीजें मैं कर रहा था तो मुझे पढ़ाने का वैसे ही शौक था. तो उस वक्त इरफान ने शुरू किया था. इरफान आई थिंक 17-18-20 हज़ार सब्सक्राइबर थे, और इरफान ने कहा आप भी शुरू करते, मैं आपको शॉर्ट आउट दूंगा, हम अच्छा कुछ कर सकते हैं. तो मैंने कहा शॉर्ट आउट मिल रहा है, क्योंकि उस वक्त शॉर्ट आउट बड़ा अच्छा लगता है, क्या भाई फ्री में शॉर्ट आउट मिल रहा है. तो मैंने स्टार्ट किया. फिर मेरे एक और टीचर है जो भी माशाल्लाह बड़े सक्सेसफुल यूट्यूबर है, स्टडी बनाने थी ना, GFX मेंटोर. उन्होंने नया नया शुरू किया था. उन्होंने कहा था आमिर तुम्हें तो पढ़ाना आता है, तुम भी तो पढ़ाओ, तुम्हारे पास तो कैमरा सब कुछ है. अच्छा, मैंने कहा सब पे करते हैं. तो फिर इस तरह चैनल बनाया था IT स्टफ, और वो मैंने अपने जो है ऑफिस से स्टार्ट किया था. मैं रैंडम वीडियोस डाल रहा था. उस वक्त तो कैमरे के सामने बात करने का कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि किस तरह कैमरे के सामने बात कर सकते हैं, क्योंकि आई वाज ऑलवेज बिहाइंड द कैमरा, शूटिंग समथिंग, शूटिंग बर्गर वीडियो, शूटिंग पिज्जा वीडियोस. तो कैमरे के सामने आने का कॉन्फिडेंस नहीं था. दो आई कैन टीच पीपल, अगर मेरे सामने 10 बच्चे हो तो आई कैन टीच देम वेरी फ्लुएंटली, बट कैमरे के सामने आके बात करने का थोड़ा एक्सपीरियंस कम था. तो वो फिर IT स्टफ इस तरह, YouTube चैनल इस तरह स्टार्ट हुआ था एटलीस्ट. जब उस वक्त स्टार्ट किया था तुमने एज अ YouTube चैनल, और अब तो इट्स ग्रोन इनटू लाइक वेबसाइट और कोर्सेज और लाइव स्पेस, तो विजन क्या था? मतलब व्हाट वाज द पर्पस एंड डिड दैट चेंज, या शुरू से प्लान यहाँ तक आने का था? So the purpose, IT stuff का purpose was never a website, because I had a production company, I was earning money from it. It was just कि यार YouTube है, वीडियोस बनाते, लोगों को सवाल आते रहते हैं, तो अगर कोई सवाल करता है तो instead of me answering them every time, I'll give them a link to my video कि भाई ये लो और आप सीख सकते हो. मेरे से बहुत बेहतर वीडियोस तभी मौजूद थी, आज भी मौजूद है YouTube पे, और आगे भी होती रहेंगी. तो the maqsad was never to build a website of IT stuff. हुआ कुछ ये था कि कुछ लोग बार-बार सवाल कर रहे थे कि हमें ये सीखना है, हमें ये सीखना है. तो वो मतलब हम बार-बार कहते हैं, बहुत लोग पूछते हैं, वो 5-6 लोग होते हैं, बार-बार पूछते रहते हैं. तो उसके लिए एक मैंने छोटा-सा कोर्स बनाया था, और फिर मैंने कहा था कि यार वेबसाइट नहीं थी उस वक़्त. मैंने उनको कहा कि भाई ये एक कोर्स बनाया है मैंने, अगर आपको एक कोर्स चाहिए तो ये मेरा ये पैसा का नंबर है, यहाँ पैसे ट्रांसफर करो, मैं आपको ड्रॉपबॉक्स पर लिंक दूँगा, कोर्स आपका होगा. पहले दिन में कुछ 10-12 बच्चों ने कोर्स खरीदा. वो आई थिंक 750-800 का कोर्स था. तो वो अच्छा मुझे मिला कि यार पैसे दे रहे हैं लोग. एंड दैट्स हाउ द वेबसाइट स्टार्टेड. अच्छा, तो तुम प्रोडक्शन कंपनी वाज योर मेन जॉब आई सपोज, और IT स्टफ तुमने पहली दफा ये कोर्स कुछ बेचे. Is IT stuff now your full time thing, main thing at least, not even full time, चलो in this point of time. हाँ. अच्छा, तो वो ट्रांजिशन मुझे जरा वो बताओ उस जर्नी के बारे में, जब तुमने कहा हाउ डिड यू गो फ्रॉम लाइक एक कोर्स मैं ड्रॉपबॉक्स लिंक के थ्रू, इजी पैसा के थ्रू बेच रहा हूँ, टू हैविंग अ वेबसाइट, टू डिसाइड, मतलब तुम्हें इसकी नीड क्यों लगी? बिकॉज दिस ऑल ऑफ दिस नीड्स टाइम, ऑल ऑफ दिस नीड्स एफर्ट, एंड ऑल ऑफ दिस, और एफर्ट और टाइम तुम्हारे पास एक लिमिटेड अमाउंट ही है, तो या तो तुम्हारी प्रोडक्शन कंपनी पे जाएगा, या तुम्हारे यूट्यूब पे जाएगा, या IT स्टफ पे जाएगा. तो व्हेन डिड यू डिसाइड कि इसमें टाइम लगाना है, इसको डेवलप करना है?
सो हुआ ये कि जब हमने कोर्सेज स्टार्ट किया तो प्रॉब्ली इट वाज सितंबर 2019 को कोर्स हमने लॉन्च किया था। आई रिमेम्बर कुछ दिन इरफान की जलबरी की शूट थी एंड अब रास्ते वापस आते मैं स्टोरीज आ रहा था कि मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है और मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था। इरफान ने कहा था ये क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे, मैंने कहा था सेलिंग लाइक हॉट केक्स। वो इमेच्योर सा लफ्ज था। तो खैर वो हमने फिर लॉन्च किया। फिर दिसंबर में मेरे अपने दोस्त ने, मेरा अमीर अली, वो पिछले 12 साल का दोस्त है, तो मैंने सोचा अमीर मुझे कोर्स करना है बिकॉज ही वाज टीचिंग इन आईवीएस। ओके। तो मैंने सोचा कि मुझे ड्राइंग का कोर्स करना है, लेट्स डू अ ड्राइंग कोर्स। तो उसने कहा करते हैं। फिर मेरे घर पे वो आया और हमने अपने रिकॉर्डिंग लगाई, कैमरा रिकॉर्ड पे लेके ऊपर में बस सेकंड मैंने कैमरा किसी मांगा क्योंकि मेरा कैमरा सब खराब था। फिर आई हैड टू डू ओवरहेड शॉट, तो मैंने अपना जो फोन था एसेट उसको मैंने ओवरहेड लगा के किसी तरह वो कोर्स शूट किया। और फिर मैंने ये क्या किया, मैंने अपना भी कोर्स इसी तरह शूट किया। मेरा कोर्स एक और जो मेरा कोर्स शूट हुआ था पहले, जो बाइक जो इसी बस वाला कोर्स था, वो मैंने जो है वो रेडी किया। और सलमान पारेख भाई से मैंने जो है वो शॉपिफाई के बारे में सुना कि ये वेबसाइट से आप कोर्स बना, मतलब आप सेल कर सकते हो ऑनलाइन। तो ये मैंने सब्सक्रिप्शन वगैरह सी खरीदी। और उस वक्त हुआ ये था कि वो अमीरली का कोर्स जो है ना, वो वेबसाइट हमने लॉन्च किया था दिसंबर में। तो अमीरली का कोर्स मैंने शूट किया था आई थिंक मार्च में, मतलब इतना पहले हम शूट कर चुके थे, कभी एडिट करने की हिम्मत ही नहीं हुई। फिर जब ये लोगों ने खरीदना शुरू किया मेरा कोर्स, तो फिर मैंने अमीरली का कोर्स एडिट किया। फिर हुआ ये कि अमीर अली ने उस वक्त एक वेडिंग कार्ड बनाया था इकरा अजीज का, विच गॉट वायरल। तो उसके अचानक एक दिन में 2000 से तकरीबन 15-20 हजार फॉलोअर्स हो गए थे इंस्टाग्राम में। तो पता नहीं क्यों मैंने उसको कोर्स रिलीज कर दिया और मैंने अमेंडी को कहा यार ये चीज़ है पब्लिक कर दो। तो उसने कहा हाँ ठीक है कर देते हैं। तो उसी दिन हमारे जो है पहले दिन में हम अमेंडी के 50 कोर्स बिके थे। तो बड़ा खुश हुआ था हम लोग यार, ये यार पहले दिन 50 कोर्स बिक गए, डिमांड है इसकी मतलब। तो इस तरह वेबसाइट फिर जब बनने शुरू हुई, तो जब पैसा आना शुरू हुआ, दो इतना पैसा नहीं था उस वक्त, लेकिन आपको एक तरह देखा क्या देयर इज अ नीड फॉर इट, मतलब मार्केट वांट्स टू पे फॉर इट। वरना आपने हमेशा सुना होगा पढ़ाई में पैसा कौन डालता है, स्पेशली इन पाकिस्तान। मतलब आप ऑनलाइन, आप स्कूल में जाओ, आप कहीं करो ऑनलाइन, एक चीज जो कि आप टेंजिबल चीज नहीं उसको आप नहीं देख सकते, तो व्हाई वुड समवन पे फॉर इट। तो जब वो अमेरिका का कोर्स लाइव हुआ तो भी बड़ा अच्छा मोमेंटम मिला कि यार ये अच्छी चीज हो रही है। और फिर मैंने अपना कोर्सेज जाना शुरू किया। देन द पैंडेमिक हैपेंड। उसमें ये हुआ था कि उससे 1-2 महीने पहले मैंने जो है वो मुरू भाई के साथ एक कोर्स शूट किया हुआ था। आई टोल्ड हिम कि मुरू भाई ये सीन है, क्योंकि मीटअप में आते थे, मैंने मुरू भाई ये सीन है, हम बेचेंगे, अगर बिकेगा तो इतना आपका इतना मेरा। मुरू भाई हाँ ठीक है कर लेते हैं। एक दिन उन्होंने घर पे बुलाया, मैंने शूट किया। और जब वो ये भी जो है ना तब शूट हुआ था जब प्रॉब्ली ये भी 2019 में शूट हुआ था। वेबसाइट बनने से पहले वो शूट कर चुका था मैं कि कभी वेबसाइट बनाऊंगा तो बेचूंगा। फिर वो उनका कोर्स मार्च में आया तो उनका जरा बूम आया कि यार लोग खरीद रहे हैं। फिर ऐसे ऐसे मेरे 1-2 कोर्सेज आते रहे, मैंने ऑनलाइन कोर्सेज बनाने शुरू किए। फिर अगस्त में इरफान का कोर्स आया 2020 में। वो बहुत सेलिंग लाइक हॉट केक्स वाला सीन हो गया था। इरफान ने काफी मार्केटिंग की। तो उसमें मुझे लगा कि यार इफ यू डू द राइट मार्केटिंग विद द राइट पर्सन with the right content, this might work. तो फिर we transition from, क्योंकि प्रोडक्शन का काम ऑलमोस्ट पैंडेमिक में रुक चुका था, आपको पता है जब कुछ हो ही नहीं रहा तो कोई कुछ क्यों करेगा। So that's when I transitioned from production to IT stuff. I'm glad that I had it IT stuff before pandemic, कि मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ा पैंडेमिक में, यार अब क्या करना है, कुछ हो नहीं रहा तो। अच्छा, तो अभी आईटी स्टफ का स्टेटस क्या है, मतलब स्कोप अभी आजकल क्या चल रहा है? देयर इज द वेबसाइट और कोई फिजिकल स्पेस भी है? सो बेसिकली अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं अगले साल के लिए। अभी पिछले 3-4 महीने से आईटी स्टफ काफी खामोश था, रीजन बीइंग कि वी जस्ट गॉट फिजिकल स्पेस। तो उस पे वी आर जस्ट सेटिंग इट अप कि अभी एम्प्लॉयज हायर करें, बिकॉज अभी समझ लें कि आईटी स्टफ के कोर्स में प्रोड्यूस कर रहा था, एडिट में मैं कर रहा था, फैकल्टी से मिलने में मैं जा रहा था, डिजाइन में मैं कर रहा था, एवरीथिंग वाज मी। तो अभी मैंने फिजिकल स्पेस ली है, तो वहां पे जो है 3-4 महीने से वी आर सेटिंग इट अप, बिल्डिंग अ टीम, कोर्सेज शूट हो रहे हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते वी आर शूटिंग अ कोर्स विद सर इमरान नदीना जीएफएक्स मेंटोर, उनके साथ कोर्स है। कल एक कोर्स हमने एक और कंप्लीट किया है, परसों से एक और कोर्स शूट हो रहा है, ब्लेंडर कोर्स शूट हो रहा है, मेरे कुछ कोर्सेज लाइंड अप है, सो वी आर शूटिंग इट अप। और फिर इंशाल्लाह जनवरी से वी स्टार्ट रिलीजिंग द कोर्स एवरी मंथ, के हर महीना ही नया कोर्स आ रहा है, ताकि just get to the momentum of physical जगह है हमारे पास, एडिट मीटअप शुरू होने वाला है IT Stuff के नाम से, and there are many more things that are coming for at IT Stuff platform. अच्छा, एक साइड क्वेश्चन,
ये जो तुम सारे लोगों के साथ कोर्सेज बनाते हो, मोरू हो गया, जीफेक्स मेंटर हो गया, अमीर हो गया, तो इनके साथ तुम्हारा वो क्या होता है, विदाउट बीइंग टू स्पेसिफिक, रेवेन्यू शेयरिंग का क्या सीन है? मतलब रेवेन्यू शेयरिंग है या फिर रेवेन्यू उनको शेयरिंग इस तरह अपफ्रंट होता है कि आई पेमेंट गिव करते देम, हो? सॉरी, अपफ्रंट पेमेंट करते हो या रेवेन्यू शेयरिंग होती है या क्या होता नहीं है? नहीं नहीं, अपफ्रंट पेमेंट अभी तक मैंने को कहा, जैसे मेरे पास इन्वेस्टमेंट आएगी ना, उस दिन मैं अपफ्रंट करूंगा। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। सही कोई है। अभी आपने देखा किसी भी, मैंने आउटसाइड ऑफ माय फ्रेंड सर्कल किसी को अप्रोच नहीं किया। मैंने किसी ऐसे बंदे को अप्रोच नहीं किया कि जो इसको मैं अफोर्ड नहीं कर सकते, जब मुझसे अपफ्रंट पेमेंट मांगेगा। इरफान डिडंट आस्क फॉर इट बिकॉज़ इरफान तो नोज द वेबसाइट एवरीथिंग। इरफान को मैं नंबर्स दिखाता रहता हूँ, एंड ऑल दीस आर माय फ्रेंड। मतलब मूरू भाई, आई कैन, मतलब आई हैव हिज नंबर, तो आई कंसीडर हिम एज माय हाँ फ्रेंड। हाँ, इतनी फिर बातचीत नहीं होती लेकिन कोई बात नहीं। डेली तो दोस्त है, हाँ। बाकी लोगों को ना मैं जानता हूँ ऑलरेडी, क्योंकि मैं खुद ही पढ़ाता हूँ, तो चीजें हैं उनको मैं जानता हूँ। तो मैंने को अपने सर दीना को तो पिछले 10 साल से जानता हूँ, अपने यूनिवर्सिटी के टाइम से जानता हूँ। तो उनको मैं किसी तरह परसुएट कर, सर पढ़ाएं, सर मुझे कह रहे हैं मैं ऑलरेडी फ्री पढ़ा रहा हूँ या पेड करूंगा। मैंने कहा सर करते हैं सर, कुछ करते कुछ डिफरेंट करते हैं। तो सर फाइनली कन्विंस हो चुके हैं। तो इसी तरह मैंने इनसे जो अपफ्रंट पेमेंट की बात नहीं की है कि यार, मैंने कहा जब दिखेगा, ठीक है, आप अपना टाइम डाल रहे, मैं अपना टाइम डाल रहा हूँ। मैं फिर हाँ एडिट में मैं आई एम टेकिंग, आई एम लाइक, मेरा पूरा करियर डिपेंडेंट है इसमें। आप यू हैव समथिंग एल्स टू फॉल बैक ऑन, आपके पास अपने ऑलरेडी एक रेवेन्यू स्ट्रीम चल रही है। बट फॉर मी दिस इज माय ब्रेड एंड बटर। तो आई एम टेकिंग मोर रिस्क देन यू। तो हम्म। इस तरह मैं कुछ करता हूँ, वो मान जाते हैं, and then we start working। अच्छा, ये कोर्सेज सारे एडिट तुम करते हो? करता था, अब मैंने एडिटर हायर अच्छा किया है। अच्छा, राइट। बट मैं यही सोच रहा था क्योंकि इसमें तुम्हारी जो थ्रू लाइन आ रही है वो तुम्हारे टीचिंग का शौक आ रहा है, जो तुम अपने इकरा यूनिवर्सिटी में शायद स्टूडेंट्स को कर रहे थे, फिर एडिट मीटअप का भी मकसद, मतलब। उससे पहले अपने टीचर्स को पढ़ाया था। हाँ, इल्म इल्म का फरोख्त आई गेस इज द थिंग। तो अभी जब फिजिकल स्पेस आ गई है तो कोर्सेज लेकिन ऑनलाइन ही होंगे? हम्म। अच्छा, मतलब लाइव लाइव क्लासेस का सीन अभी नहीं हो रहा? लाइव क्लासेस में जो है, मैंने 2-3 बैचेस शुरू किए थे पढ़ाना अपने घर से, जब पैंडेमिक हुआ था। बट उसमें ना अली भाई, वो चीज मजा नहीं आती आपके। अगर आपके 15 स्टूडेंट्स हैं, तो वो क्या करते हैं कि यार किसी ने एक नहीं आया, किसी ने दूसरा नहीं आया, तो वो चीज ना एक जेल चीज नहीं हो पाती। फिर कोई बंदा कह रहा है सर मैं आज बिजी हूँ, मुझे बाद में पढ़ा दीजिएगा, तो वो मजा नहीं आ रहा था। तो हम्म इसके लिए जो फिर मैंने ऑनलाइन क्लास कभी बंद ही कर दी है। हम्म। नहीं, अच्छा, तो मतलब ये लाइव लाइव स्पेस में ऐसा नहीं होगा कि मतलब आप एक बिल्कुल स्कूल की तरह या कोई ट्यूशन सेंटर की तरह बच्चे आ रहे हैं, हर हफ्ते आ रहे हैं, कोर्स ओ, चल रहा है? वो फिजिक्स क्लासेस तो वी आर डूइंग, फिजिकल अच्छा। क्लासेस अभी जस्ट, वी जस्ट कंक्लूडेड अ फर्स्ट बैच ऑफ फिल्म मेकिंग बेसिक क्लासेस। अभी हाँ सेकंड बैच शुरू होने वाला है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि लाइव स्पेस में तुम्हारे पास फिर ये रूम रूम बन जाता है ना कि। हाँ, अच्छा, तो फिजिक्स इसको। क्लासेस तो वी आर डूइंग वर्कशॉप्स नाउ, मतलब वी हम्म। आर like minting every inch of the space that we have right now। हाँ, तो इसका फिर वो क्या है, फोकस क्या है आईटी स्टफ का? ये क्रिएटिव स्पेसेस में ही है, फिल्म मेकिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन वगैरह, या ट्रेडिशनल रोल्स की तरफ भी जाना है यार तुम्हें? मेरा अली भाई प्लान ये था कि जिस तरह वो पीटीवी में आता था ना पहले, कि सुई में धागा डालना सिखाते थे। मेरा हाँ, प्लान है कि वो भी आईटी स्टॉक पर हो प्लेटफॉर्म पे। बट सही। अब बहुत बाहर की कहानी है, बट क्योंकि अभी जस्ट आई एम द ओनली पर्सन जो कि कोर्स फाइनल कर रहा है, तो मैं अपनी ही फील्ड पे ढूंढ रहा हूँ कि यार मेरी अपनी फील्ड कवर हो जाए। फिर आई एम ट्राइंग टू गेट प्रॉब्ली मोर एम्बेसडर्स फॉर आईटी स्टफ, जो कि हु कैन गेट मोर टीचर्स फॉर आईटी स्टफ। राइट। अभी इज जस्ट, अभी आप समझ लें कि अभी भी टेस्टिंग द वाटर वाला सीन है, बिकॉज अभी सिंस वी डोंट हैव एनी इन्वेस्टमेंट, तो हम्म हम अचानक इतना स्केल नहीं कर सकते। हम्म। तो वो चीजें अभी थोड़ा हर्डल्स हैं, बट इंशाल्लाह कोई मसला नहीं, हो जाएगा वो भी। ये जो तुमने लेकिन वो जो आप भी वर्ड्स। रिकमेंड करेंगे कुछ फैकल्टीज को, मतलब को शूट करेंगे, फिर आप वो किसी और रिकमेंड करेंगे, एंड देन द चेन गोज ऑन हाँ, इंशाल्लाह। ये जो तुमने अभी एक दो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ना, उनसे मुझे यही एक सवाल आ रहा था कि इन्वेस्टमेंट और स्केलिंग, व्हाट इज द प्लान? आर यू ट्रीटिंग दिस लाइक अ स्टार्टअप, कि मतलब आउटसाइड इन्वेस्टर एक दफा ये रोलिंग मशीन चलना शुरू हो जाए, बेशक अभी तुमने एक क्रिएटिव पूरा एक तुमने स्वीट बना लिया फॉर एग्जांपल कि ये 5-6 प्रोफिशिएंसीज हैं, हम इनका बेसिक टू एक्सपर्ट लेवल हम कोर्सेज कर रहे हैं, चल रहा है, इसके बाद विल यू, और मतलब यू डोंट हैव टू टेल मी इफ दिस इज अ सीक्रेट, बाद में क्या तुम कहोगे कि आउटसाइड इन्वेस्टर्स फंडिंग रेस कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, यू गोइंग टू ट्रीट इट लाइक अ स्टार्टअप या ऑर्गेनिक बिल्कुल ग्रोथ? बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज अभी जितना हमने, जितना हमने आज 2 साल हो गए हैं अभी, हाँ दिसंबर में 2 साल हो जाएंगे।
जितना हमने देखा कि मार्केट में पहले आप देखते हैं कि एपेटाइट है कि भी नहीं, अक्सर स्टार्टअप उस पे जाते हैं कि वो सिर्फ मार्केट रिसर्च करते हैं, स्टार्ट इन्वेस्टिंग पीपल, पिचिंग पीपल के हम इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमने ये स्कोप देखे हम ये पैसा लेके ये बिजनेस करेंगे। उन्होंने बिजनेस किया नहीं होता है, बट जस्ट के मार्केट स्पेकुलेशन होता है। बट नाउ मुझे काफी लोगों ने रिकमेंड भी किया, मुझे खुद ऐसा लगता है कि 2 साल में हमने मार्केट रिसर्च कर ही ली, क्योंकि हम ऑलरेडी मार्केट में थे, वी हैव अ यूएसपी, हमारे पास वो भी है कि हमने क्या कहते हैं इसको, आइडिया टेस्टिंग भी कर ली है कि हम लोग पैसा भी दे रहे हैं। सो आई माइट पिच सम इन्वेस्टर्स के इसको जरा स्केल करते हैं, चीजों को लेके जाते हैं, बिकॉज अभी भी बहुत कम प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में जो चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एंड इफ वी हैव एन अपॉर्चुनिटी सो व्हाई नॉट। क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन मतलब अमेरिका में तो खान एकेडमी इज ऑब्वियसली सुपर फेमस, सुपर एस्टैब्लिश्ड तरीका सिचुएशन। पाकिस्तान में भी हैं काजी के, वो आए थे बिलाल, आई थिंक हिज नेम वाज, केमिस्ट्री के टीचर थे वो, 2-3 लोग हैं, दे हैव देयर ओ लेवल्स ए लेवल्स के कोर्सेज यूट्यूब पे फॉर फ्री। आई मीन ऑब्वियसली दैट्स नॉट योर मॉडल। तो ऑनलाइन एजुकेशन की डिमांड तो खैर पता नहीं, बट एपेटाइट तो है, मतलब पीपल डू एक्सेप्ट इट। ये नहीं है कि ऑनलाइन हो रहा है तो हमें समझ नहीं आ रहा, हम इन पर्सन ही जाएंगे। इसके अलावा सो बेसिकली देयर आर 2 मॉडल्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। अगर आप देखा जाए तो खान एकेडमी इज बेसिकली बेस्ड ऑन K-12 एजुकेशन, राइट। मेरा जो स्कोप है टीच तक, अभी तक तो मेरा प्लान ये है कि वी विल नॉट फोकस ऑन K-12 एजुकेशन, राइट, वी विल फोकस ऑन स्किल बेस्ड लर्निंग। ओके, ऐसी कोई स्किल जो कि जैसे फोटोग्राफी स्किल है, वीडियो मेकिंग स्किल्स है, शूटिंग स्किल्स है, तो वी गो फॉर स्किल बेस्ड इंफॉर्मेशन। अच्छा, तो नॉट ट्रेडिशनल स्कूल सब्जेक्ट्स। नहीं, अच्छा, हाँ, that's also something I want to know कि मतलब एम फिलहाल, लेकिन तुम्हारी एसोसिएशन जो है वो दैट इज फर्मली इन द क्रिएटिव न्यू मीडिया स्पेस। हाँ, बिकॉज वो मेरी एक्सपर्टीज भी वही है, एंड आई नो द पीपल अराउंड हियर, तो मैं जानता भी उसी फील्ड में हूँ। आई कैन कनेक्ट मोर विद दोस पीपल जो कि इस फील्ड में रह चुके हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट इनटू दिस फील्ड राइट नाउ। तो फिर व्हाई वुड यू वांट टू एक्सपैंड टू अदर सब्जेक्ट्स, बस एज अ बिजनेस डिसीजन? It's a business decision also. I want the name IT stuff to be synonymous with learning. अच्छा, अगर कोई भी चीज सीखनी है तो हम जैसे स्किल शेयर बात करते हैं, यूडेमी बात करते हैं, सही। उसमें ये एक है लैंग्वेज बैरियर है, वेदर वी एक्सेप्ट इट नॉट, इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है। उसमें अगर कोई बंदा बात करता है कि यार ये आपने देखा शिकागो की ये स्ट्रीट है और यहाँ पे ये पिक्चर अगर आप लो एंगल से देखेंगे तो अच्छी लगेगी, वी कैन नॉट रिलेट टू दिस। मैं ये रिलेट कर सकता हूँ कि अच्छा फैसल मस्जिद है, उसको आप यहाँ से कर सकते हैं, अच्छा बादशाही मस्जिद है हमारा सदर है कराची में, तो आप रिलेट कर पाते हैं। जो हमारे जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं, चीजें होती है, वो पाकिस्तान के अपने ही कंस्ट्रेंट्स है। पाकिस्तान इंडिया हम तमाम दोनों के सेम कंस्ट्रेंट्स है, तो वो चीज हम रिलेट नहीं कर पाएंगे अगर कोई गोरा समझा रहा होगा, तो हम कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे लेकिन उतना रिलेट नहीं कर पाएंगे। सो देयर इज अ मार्केट गैप इन इट। और फिर मैंने एक वेबसाइट देखी थी बीच में, द नेम इज डोमेस्टिका। अच्छा, वो इट सेल कोर्सेज दैट आर इन स्पेनिश। अब स्पेनिश भी दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट आई थिंक बोली जाने वाली जबान है, तो अगर वो भी तो इंग्लिश में नहीं है, एंड दे आर सेलिंग लाइक अगेन हॉट केक्स, तो उन्होंने काफी वो कोर्सेज बेचे हैं, वो बिक भी रहे माशाल्लाह। सो इसके लिए मैंने सोचा कि मेरे कोर्सेज जो होंगे उर्दू में ही होंगे, क्योंकि अगर मार्केट में अगर हम सिर्फ उर्दू पाकिस्तान में नहीं कहते, हमारा बराबर वाला मुल्क भी उर्दू कहता है, बांग्लादेश में उर्दू बोली जाती है, और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है वो उर्दू में बात करते हैं, एंड दे आर मोर कंफर्टेबल लर्निंग इन उर्दू, सो दैट्स व्हाई। अच्छा, तो आई वांट टू एक्सपेंड, बिकॉज चीजें जो है ना, अगर हम देखें पाकिस्तान में भी ऑलरेडी काफी लोग पढ़ाने आ रहे हैं, एक्सट्रीम कॉमर्स से आजाद भाई हैं, वो तमाम लोग इन्हीं मार्केट क्रिएट कर रहे हैं, एंड माशाल्लाह दे आर सक्सेसफुल। तो अगर वो सक्सेसफुल हैं तो हम भी सक्सेसफुल हो सकते हैं आराम नहीं से। मतलब तुम्हारी पोटेंशियल कस्टमर बेस तो एट लीस्ट कह सकते हैं हम, हाँ 200 मिलियन की आबादी है पाकिस्तान की, 200 मिलियन पोटेंशियल कस्टमर्स तुम्हारे। इंडिया को शामिल कर लो, 400 मिलियन लाख, वो भी तो कहते हैं, हिंदी बात करते हैं। हाँ, इंडिया को कर लो, बांग्लादेश को कर लो, तो possible population is huge. मुझे ये बताओ, have there been And any we have courses sales from India as well. We have sales from India, we have sales from Dubai, we have from Saudi Arab. तो बहुत सारे मुल्कों से, आयरलैंड से आपने भी कोर्स खरीदा था एक बार ना, तो वो शौक में ये कौन सा नंबर है, तो पाकिस्तान का नंबर नहीं लग रहा। हाँ, this is the first course by the way. मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया कोर्स, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला, मैंने घुमा लिया था, बट थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन टू IT स्टफ। वो तो खैर वो तो करना ही था, बिकॉज आई बिलीव इन दिस एज वेल। बट ये पहली दफा हुआ है कि मैंने परचेस किया और सवाल आ गया भाई कौन हो तुम कौन हो।
अच्छा मुझे ये बताओ, इन दिस टाइम, क्योंकि दिस इज अ न्यू थिंग फॉर यू एज वेल, तो डिसाइडिंग व्हाट कोर्सेज टू इंक्लूड, क्या चीज़ें करनी चाहिए, कोई ऐसे कोर्सेज हैं जो कि प्योरली मतलब तुम्हारे दिमाग में नहीं था कि ये भी एक कोर्स हो सकता है, ऑडियंस डिमांड से तुमने देखा हो, अच्छा इनको ये चाहिए, लेट्स मेक अ कोर्स ऑन दिस, या इज इट फुली कमिंग फ्रॉम योर प्लान? अभी तक तो फुली कमिंग फ्रॉम माय ओन प्लान। ऑडियंस की डिमांड बहुत है अभी ग्राफिक डिजाइन की लिहाज से कि उनको ये चीज़ सीखनी है। तभी मैंने सदीना को ऑनबोर्ड किया कि मैंने सर ये तो मैं नहीं कर सकता, और आई डोंट नो इवन अ सिंगल टीचर हु कैन टीच बेटर देन यू। अगर वो जीएफएक्स मेंटर नहीं भी होते तो भी वही पढ़ाते, बिकॉज मैं तो उनको पर्सनली जानता हूँ। राइट। मैंने इससे खुद पढ़ा भी सदीना से, मैं उनकी क्लास में बैठ चुका हूँ, तो आई हैव पर्सनली लर्न फ्रॉम हिम। तो दैट्स व्हाई जो डिमांड आ रही है उसके अराउंड हम केटर करते हैं, बट वो डिमांड तो किसी चीज की भी आती रहती है। सही। तो वो अभी हमने सिर्फ क्योंकि टीम छोटी है अली भाई, तो टीम में ही फैकल्टी मैनेज कर रहा हूँ, तो अभी बहुत ही छोटी छोटी चीजें अप्रोच हो रही है। इंशाल्लाह जब आपका पॉडकास्ट वायरल होगा तो इन्वेस्टमेंट जब आएगी तो फिर हम एक्सपेंड करेंगे। वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्लेस इतनी उम्मीदें ऑन दिस पॉडकास्ट, बट चलो ठीक है। नहीं नहीं इंशाल्लाह, क्यों नहीं यार, वो जो है बी ऑप्टिमिस्टिक इंशाल्लाह। पाकिस्तान, अच्छा तुम ये कर रहे हो, व्हाट हैज बीन योर बिगेस्ट हर्डल सो फार, इन जिसको तुम ओवरकम करने में सबसे ज्यादा मुश्किल हुई, या अभी तक ओवरकम कर रहे हो, मतलब सबसे ज्यादा डिफिकल्टी तुम्हें स्ट्रक्चरल, सोशल, मेंटल क्या रही है? सो तीन चीजें आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट। पहला है प्रिपेयरिंग द ऑडियंस फॉर इट। हाँ, तो पहला इज प्रिपेयरिंग द ऑडियंस थिंग, कि आपने ऑडियंस को प्रिपेयर करना है कि ऑनलाइन लर्निंग से कुछ चीज हो सकती है। क्योंकि पहले टाइम पे लोग बड़े स्केप्टिक होते हैं कि जैसे आपने अभी तक कोर्स देखा नहीं है, तो इसी तरह काफी सारे और लोग हैं जिन्होंने कोर्स देखा नहीं है। तो उससे ये होता है कि अगर आपने जब तक कोर्स देखा नहीं है तो वो आप आगे किसी को रिकमेंड नहीं करोगे। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि अगर चीज आपने कोई यूज ही नहीं की तो आप किसी हाँ को रिकमेंड नहीं कर सकते। तो लोग लेके भूल जाते हैं कभी कभार। मैं आपको कुछ हाँ बोल नहीं रहा, हाँ बट जस्ट जनरल प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने भी काफी कोर्सेज खरीदे, डोमेस्टिका से खरीदे हुए। आई हैव हाँ वॉट स्किलशेयर, आई हैव मास्टर क्लास। तो मेरे पास काफी सारे कोर्सेज हैं यूडेमी के, कुछ कोर्सेज जो कि मैं खुद भी देखना भूल जाता हूँ, बिकॉज वी जस्ट मेक अ सेल्फ डिसीजन एंड देन मैंने कहा हाँ चलो पढ़ लेंगे, अब तो अपना ही है ना, अब तो ही या कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो एक तो वो वर्ड ऑफ माउथ जो मैं चाह रहा हूँ वो हो नहीं पा रहा है। एक तो वैसे ही हमारे पाकिस्तान में ऑनलाइन लर्निंग का इतना अच्छा स्कोप नहीं है, एंड देन द वर्ड ऑफ माउथ इज मिसिंग। द सेकंड इज द स्ट्रक्चर। जैसे शॉपिफाई का जो प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में इनेबल नहीं है, तो ई कॉमर्स वैसे ही पाकिस्तान में जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, देन वी डोंट हैव गुड पेमेंट मेथड्स। यप। वो एक बहुत बड़ा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का एक फ्लॉ है, जो कि उसको ओवरकम करना हम, मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, प्रॉब्ली द गवर्नमेंट हैज टू बी इन्वॉल्व इन इट। हाँ एंड इट्स नॉट जस्ट अस, काफी यूट्यूबर्स को मसले आते हैं ऑल दो स्टफ। अब तो पता नहीं वो क्यों नहीं करते, खैर वो अलग, आप जब कीजिएगा पॉडकास्ट इंशाल्लाह फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ पूछिएगा ये हाँ बात। हाँ। तो और तीसरी जो है ना हमारे ये है कि ऑडियंस हमारी जो है वो इतनी एजुकेटेड नहीं है जितनी उनको होना चाहिए, अच्छा। विच इज नॉट देयर फॉल्ट। हाँ। बट जितना एक्सपोजर हमें मिला है, आपको मिला है, इरफान को मिला है, उतना एक्सपोजर सबको नहीं मिला। अच्छा। उनको बेसिकली उनको ये लगता है कि जब आप 12वीं जमात तक या प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी तक पढ़ाई कर ली, अब पढ़ने की जरूरत नहीं, अब हमें सब कुछ आता है। अब पढ़ना मतलब कि हमने पहले कुछ नहीं पढ़ा। तो वो जो अर्ज है ना टू कीप लर्निंग, हाँ। जो एक अपना लफ्ज है टू अनलर्न एंड टू लर्न समथिंग न्यू, वो चीज नहीं आ रही हमारे ऑडियंस में। जब वो आएगी, जिससे हमारे जो गोरे हैं वो हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। तो वो चीज हमारे पाकिस्तान में जब आ जाएगी इंशाल्लाह, आ भी रही है ऐसे ऐसे, तो वो फिर और हमारे जो है इंशाल्लाह कस्टमर्स मेरे जैसे और लोगों के जो स्टार्टअप है टेक के, उनको सक्सेसफुल बनाएंगे। पहली दो बातें तो और ऑब्वियस मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप बातें हैं कि भाई पेमेंट सेटअप जो है वो हमारा शिट है, दैट्स अ स्टैंडर्ड डिफिकल्टी, और बात फैलेगी तो मार्केटिंग होंगी। बट ये तीसरी बात जो तुमने की है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स मोर, आई डोंट नो इफ यू हैव एनी एग्जांपल्स, लेकिन डू यू हैव एनी, मतलब ये तुमने रियलाइज कैसे किया कि लोगों के अंदर देयर इज नॉट अ कल्चरल लाइक डिजायर टू अर्न, टू गेन मोर नॉलेज, मतलब अपस्किल करने का हमारे यहाँ रिवाज नहीं है? ये वाली बात तुमने कैसे रियलाइज की? मैं आपको बहुत आसान से मैं समझाता हूँ, ये बात मैंने अपने खुद अपने आपको देखी थी।
जैसे अगर कोई चीज सिखा देना यार इसको ऐसा नहीं इसको करते हैं, तो एक बड़ा कॉमन होता है अपने बाप को सिखाएगा तू, मुझे नहीं पता क्या। अच्छा, हाँ, तो वो चीज आपको होता है ना, एक क्या कहते हैं हम उसको, कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, कि यार आपको कोई अगला बंदा सिखाए तो आपको बुरा लगता है कि यार अगर कोई समझो कि एक वेडिंग फोटोग्राफर है, हाँ, वो एक इरफान का कोर्स लेता है, तो किसी को बताएगा नहीं है मैंने मैंने कोर्स लिया सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि अबे तेरे पास ऑलरेडी कैमरा, तेरे को चलाना नहीं आता यार। वो अच्छा, अगले के सवाल से डरता है कि यार उसका अच्छा, सवाल ऐसा ना आ जाए, तो प्रॉब्ली वो सवाल से डरता है और फिर अगला बंदा कोर्स भी नहीं लेगा। होना ये चाहिए कि भाई ठीक है सीख रहा है, वेडिंग फोटोग्राफर तो है, कुछ क्या पता लैंडस्केप में जाना चाहते हो, उसको कुछ नई चीज स्किल सीखनी हो, तो वो वाला जो सीन है ना कि हम उस चीज को अडॉप्ट नहीं कर पाते। मैंने रिसेंटली ऑडियो बुक्स सुनना शुरू किया, और मैं बहुत रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैंने बहुत लेट शुरू किया है। तो वो चीज जो है ना, वो ये मैं था यार, मुझे तो सब कुछ आता है यार, हाँ, मैं तो हाँ, बिजनेस कर रहा हूँ, चीजें हो रही हैं, बट मैं क्या करूंगा ऑडियो बुक सुन के, या फिर मैं क्या करूँ किताबें पढ़ के। हम्म, बट जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो ये भी तो हमारी भी गलती है ना, कि हमें भी ये नहीं सिखाया कि यार सीखना कभी खत्म नहीं होता। या, मैं बड़ा प्राउडली कहता यूनिवर्सिटी में कि अभी तक कहता था कि यार मैंने 12वीं जमात से अब तो कोई किताब नहीं पढ़ी, जरूरत ही नहीं पड़ी। अब इतना बेवकूफ था मैं ये बात बोलता था, बट नाउ दैट आई रियलाइज आई एम 32 years old. हाँ, हाँ, नहीं, it's very interesting. I mean, I think I will follow up on this depending on who I speak to next. लेकिन वो वाली बात ना, हमारे यहाँ, आई मीन कंट्रोवर्शियल बात लगेगी शायद लोगों को, लेकिन सोशल, कल्चरल, नेशनल लेवल पे एक थोड़ी हमें सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी है कि हम जीते हैं। एंड ये वाली बात कहना कि तुम ये सीख लो, दिस इज ऑब्वियसली, अगर आप जीते हैं तो आपको सीखने की क्या जरूरत है, आपको तो पता है सब कुछ पहले से। तो दिस इज लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ थ्रेट। तो और इवन ये बहुत डेंजरस सब हो जाता है, जब अपने दोस्तों से भी शेयर नहीं कर सकते। हाँ, आप उनको भी नहीं बोल सकते मुझे चीज सिखाना है, तूने कैसे किया। वो हम्म, एक बात है कि यार इसने मुझे डाउट कर लिया, हम्म, तो आप दूसरों को क्या अपने दोस्तों से सलाह बात नहीं कर सकते। हाँ, और इन माय ये पर्सनल थोड़ा सा कॉर्पोरेट, डेंजरस है। मेरा पर्सनल जो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस रह चुका है पाकिस्तानियों के साथ, स्पेसिफिकली इन द मिडिल ईस्ट, वो ये भी होता है कि देयर इज more a sense of competition than a desire to cooperate, कि मतलब मैं आगे निकल जाऊं, और अगर मुझे किसी और को काटना पड़े दैट्स फाइन। एंड ये दिस इज लाइक वेरी एक्सेप्टेड, एंड आई डिड नॉट पर्सनली, सिर्फ मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने दूसरों में, दूसरी कंट्रीज के लोगों में, दूसरे कल्चर्स के लोगों में ये बात बिल्कुल इतनी नहीं देखी। आई डोंट नो, इट्स जस्ट वन पर्सन। अच्छा, while you're doing this, अभी तुम्हारा साथ में एक और प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ है, which is your studio space where you're inviting people to come over, और वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं ये वो। तो आई टीच स्टफ इज अ वेरी क्लियर एजुकेशनल मकसद, ठीक है। बट पाकिस्तान में, आई एम अज्यूमिंग, वन ऑफ द थिंग्स यू नोटिस्ड वाज कि लोगों के पास फिजिकल लिमिटेशंस है, जगह नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, वो नहीं है। एंड अगर तुम फैसिलिटेट करना चाह रहे हो तो एजुकेशन इज वन थिंग, एंड द टूल्स इज द अदर पार्ट ऑफ इट। इज दैट व्हाई यू स्टार्टेड इट? तो बेसिकली अगर आपने एक पैटर्न नोट किया होगा, जो भी तमाम चीजें मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अपने एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुझे लर्निंग में मसला है, मैं अनलर्न नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने किताबें देर से पढ़ना शुरू की। तो ये मसला मेरा ही था कि यार जब मैं शुरुआत कर रहा था, तो मैंने आपको कहा ना कि मैं ऑफिस के कैमरा यूज करता था, उनका इक्विपमेंट यूज करता था, ताकि मैं एक्सपेरिमेंट्स करूँ। मेरे कभी मेरी बहन की शादी थी और कैमरा नहीं था, तो हाँ, मामू कैमरा लेकर आए थे टू शूट शादी की चीजें मुझे। तो वो कैमरा लेके मैं छत पे आता था, क्रोमा लगा के अपना शूट करता था, क्योंकि वो एक जब कैमरा घर पे कैमरा है, हाँ, तो ये लिमिटेशन हमारे पास तब से थी। और उसी से मैंने सीखा कि ये मेरे पास तब थी, तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने अभी इतना इक्विपमेंट दिया है, तो एक दिन हफ्ते में देने में क्या मसला है। ताकि एक यही कम्युनिटी बिल्डिंग जो एडेड मीटअप में था, कि एक दूसरे को लोग जानेंगे, काम करेंगे, देखेंगे कि स्पेस किस तरह काम होता है, कैमरे से सीखेंगे कि अच्छा इस कैमरे से ये शूट हो सकता है। और बस यही था मकसद स्पेस शुरू करने का। अभी हमने फिलहाल पॉज किया हुआ है ड्यू टू थोड़ा कंसर्न, बिकॉज हमने हायरिंग नहीं थी मेरे पास, तो मैं उसको अकेला मैनेज कर रहा था, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था, लोगों का सवाल जवाब बड़ा वो टेक्निकल हो रहा था। और मैंने फीस भी रखी हुई है, फीस करके भाई नॉमिनल फीस, बट मैंने फीस इसलिए रखी कि वो फ्री ना हो, हाँ, हाँ, और फीस इतनी भी ज्यादा नहीं कि कोई अफोर्ड ना कर सके। तो अभी इंशाल्लाह जनवरी से वो भी स्टार्ट कर देंगे वापस हम। सही, 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 सही।
Yeah, that's good. अच्छा, तो अब ये तो now I understand what your business is, what your plan is वगैरह. कुछ बातें हमने शुरू में की थी about, अब तुम्हारा सारा सीन जो है ना फिलहाल, that is on the internet. Are you concerned about things like ये YouTube बैन जो एक ज़माने में हुआ था बिल्कुल recently, उससे पहले तो पाकिस्तान में कोई इंटरनेट पे बिजनेस था ही नहीं, मतलब तो वो इतनी बात ही नहीं थी. उसके बाद ये फेसबुक पे बिजनेस, इंस्टाग्राम मॉडल्स, यूट्यूब, ये सब कुछ फट गया. तो अब इस तरह की बात होना इज नॉट वेरी लाइकली विद ये इस्टेब्लिश्ड सोशल मीडिया नेटवर्क्स. लेकिन टिकटॉक नया है, टिकटॉक में पैसे नहीं है, आए दिन बैन हो जाता है, nobody cares. Is this a concern तुम्हारे लिए at any level in running your business? I would be lying अगर मैं कहूँगा कि यार मैं मुझे कोई मसला नहीं है. Of course there is a मसला, because अगर मुझे expand करना है तो मुझे अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू करना है. कल से हम टिकटॉक शुरू करने वाले हैं ताकि हम उसमें भी थोड़ी चीज डालने शुरू करें. मैंने आज पढ़ा एक उस खातून के बारे में, मिस एक्सेल के नाम से है. उन्होंने जो है वो एक जबरदस्त मैंने उनका पॉडकास्ट आया पॉडकास्ट उसका, सुना, वो वो आज डिकोडर स्टोरी आई वाला. तो मैंने पूरा पॉडकास्ट सुना उनको. I was driving to a client, I heard the 1 hour podcast and how she started and all the stuff. जिस तरह वो बना लिया, मैं उस तरह कभी नहीं बना पाऊंगा वो डांस करके चीजें करके, बट देयर इज अ स्टोरी दैट यू कैन फॉलो एंड वेयर इंशाल्लाह. तो अब हमने वही, इसका हेडलाइन भी ये थी कि यहाँ पे लोग नाच गाना कर रहे हैं और कुछ फायदा नहीं, वहां पे औरत नाच गाना करके लाखों कमा रही है. मतलब वो कुछ और भी तो कर रही है, साथ साथ पढ़ा भी तो रही है. तुमने कहाँ देखा, मिला कहाँ तुम्हें ये पॉडकास्ट? सॉरी, तुम्हें ये किधर मिला पॉडकास्ट? मतलब ये वो डिकोडर वाला है ना? की वेबसाइट पे. हाँ सही सही सही, हाँ सही. हाँ, वो बीच में तीन वीजा के ऐड भी आ गए थे फालतू में. खैर तो वो उसमें ये है कि ये प्लेटफॉर्म कभी बैन हो सकता है. कल मैं डिस्कशन हुई थी ऑफिस में मेरे से कि व्हाट इफ इंटरनेट बंद हो गया. अभी बीच में गूगल जस्टमेंट बंद हुआ था, दुनिया बंद हो गई थी. तो व्हाट इफ इंटरनेट ही बंद हो जाए, शार्क कोई केबल खा जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब होता रहता है ये. तो वेयर डू वी स्टैंड देन? तो बस अल्लाह करे ना हो, अगर हुआ तो बहुत बुरा इफेक्ट होगा. Could be a reason that I'm going towards physical classes as well now that we have physical space के online नहीं चलता, तो there is physical something that people, and then that's why I want to do more physical stuff. The space is one of them, edit meetups is one of them, workshops that we are coming up with, that is one of them. ताकि लोगों को पता चलता रहे IT stuff के बारे में कि अगर मैं कुछ नहीं हूँ IT stuff, मैं कोई और है, तो there is a physical presence and a digital presence of IT stuff. सही सही. ऑल्सो तुम्हारे पास वेबसाइट भी है, तो you're not fully dependent on the social media networks. मतलब अगर सारे बंद हो जाएं तो एक वेबसाइट तो है ना तुम्हारे पास. अच्छा, दूसरी बात ये थी कि कम्युनिटी जो क्या तुमने कोई फर्क देखा है इन डायरेक्शन, इंथुजियाज्म, इंटरेस्ट, सिंसियरिटी, ये सारे इस तरह के अल्फाज amongst the people जो who are not famous, जो तुम्हारे पास आते हैं for classes, lessons, edit meetups, उनमें तुमने क्या कोई changes देखे हैं from when you started till now? मेरे कुछ बच्चे थे जो हर एडिट मीटअप में आते थे. हर वक्त उनका सवाल जो है ना पिछले मीटअप के सवाल से मैच्योर होता था कि अगर वो एक वक्त किसी एक की बात करें तो दूसरे वक्त वो किसी और चीज की बात करें जो कि उसी की कंटिन्यूटी पे. तो दैट वाज अ प्रोग्रेस दैट आई वाज सीइंग, नॉट ऑन ऑल ऑफ देम बट ऑन फ्यू ऑफ देम. तो देन आई इमेजिन कि यार अगर हम इसको प्रॉपर लेके जाएं, अगर हम इसमें थोड़ा सा भी पैसा, अगर हम पास स्पॉन्सर्स आ जाए, तो मैं इसको प्रॉब्ली बिगर लेवल पे कर सकता हूँ और हम कम्युनिटीज बना सकते हैं. क्योंकि एवरी टाइम यू डोंट हैव टू मेक मनी, क्योंकि कभी कभी तो आप कम्युनिटी बनाते हैं पता नहीं कब क्योंकि मैंने देखा है अभी भी, आई नो फ्यू पीपल बाय नेम जिन्होंने एडिट मीटअप में एक दूसरे से मिलकर अपने अपने काम शुरू कर दिए. दे आर अर्निंग नाउ. वो उस एडिट मीटअप में मिले थे. बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग इज नथिंग न्यू. हम सिर्फ क्या करें, लाइक माइंडेड पीपल को साथ लगा बैठा रहे हैं. कैसे ये यूट्यूब बना रहा है, ये भी बना रहा है. अरे तुम नादान में रहते हो, ये भी नादान में रहता है. कुछ साथ बना लेते हैं. मेरा इस पे इन्वॉल्वमेंट क्या था, एक प्लेटफॉर्म दिया, 2 लोग आके मिले और वो चीज आगे बढ़ी. एंड देन अगर उनको कुछ शूट में मसला हो रहा है तो वो मीटअप में आके मुझसे पूछ रहे हैं क्या ये मसला हो रहा है, या फिर अगर हम इसको आगे कैसे लेके जाएं, या कोई नई टिप्स एंड टेक्निक्स. अभी हम इस साइड से जो है ना वो भी स्टार्ट कर रहे हैं, जो मेरे दिमाग में आइडिया. जैसे वो बड़ा वायरल है आजकल, कॉरिडोर डिजिटल का. आपने कॉरिडोर क्यों देखा होगा, VFX VX ना देखा है ना. मैं इनको चैनल को पिछले 12 साल से फॉलो कर रहा हूँ. अच्छा, इनको फ्रेडी डब्ल्यू को. So I've seen their curve.
मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसी तरह मैं यहाँ भी स्टार्ट करूँ. इट विल बी नो शेम कि मैं उनको कॉपी कर रहा हूँ, बट एडिट पे लोगों को रिएक्ट करूँ. मैं प्रॉब्ली इरफान को कॉल आउट कर लूँ कि यार तुमने ये बनाया, इस पर रिएक्ट करो. मैं खुद बैठ के दूसरों की वीडियोस पे रिएक्ट करूँ एंड लोगों को बताऊँ कि प्रोसेस क्या है. तो अभी मैंने रिसेंटली अभी आप एक वीडियो आई थी पेप्सी के, माय नॉट मेरी जान की, रैप डीमन के साथ. उनके डायरेक्टर जोहेब काजी हैं. उनके साथ मैंने डायरेक्टर्स कमेंट्री रिकॉर्ड की है, कोई 45 मिनट की रिकॉर्ड भी है. तो उसमें प्रॉपर उन्होंने बताया कि यार मैंने रैकी यहाँ पे की आके की थी, ये मैंने यहाँ ड्रोन आके चेक किया था, ये शॉट यहाँ पे क्यों है, ये शॉट यहाँ पे क्यों है. तो इस तरह मैं अभी और चीजों पे एक्सप्लोर, जितने मेरे कॉन्टेक्ट बनते आ रहे हैं मैं उनको ये बताऊँ कि यार आप मेरे लिए आईटी से यूट्यूब वीडियो बना देंगे. तो वो बड़े ग्रेशियस होते हैं, तमाम लोगों ने कहा हाँ श्योर कर देंगे. अभी आई एम ट्राइंग टू गेट यंगस्टर्स के डायरेक्टर ऑन बोर्ड के वो आके उनकी वीडियो को बताना शुरू कर देंगे, उन्होंने वीडियो किस तरह बनाई. बिकॉज समटाइम ये छोटी छोटी चीजें ना आपके दिमाग में बहुत बड़ी बड़ी क्वेरी सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट उस क्रिएटर का एक्सेस नहीं होता है. तो अगर मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू वो चीज हो रही है तो व्हाई नॉट मेरी जान. तो फिर डू यू थिंक कि अभी भी लोग हैं, एक साइजेबल डिसेंट अमाउंट ऑफ ऑडियंस है जो कि सिंसियरली इंटरेस्टेड है क्रिएटिव वाले सीन में? क्योंकि पता नहीं, मतलब मैं तो बहुत आउटसाइडर हूँ. मुझे ये लगता है कि बहुत से लोग ना इसको एक बिजनेस फर्स्ट माइंडसेट लेके चलते हैं, जो जिन्होंने अभी शुरू नहीं किया तो कहते हैं यूट्यूब पे पैसे बनते हैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, इसलिए हमें जाना है. दे डोंट हैव परहैप्स एज मच ऑफ अ क्रिएटिव इंटरेस्ट. और ये करना मुश्किल है, इन चीज़ों पे मशहूर होना, सक्सेसफुल होना, क्योंकि इतने सारे लोग पहले से हैं, प्लस इट्स अ होल थिंग. तो जब आपके पास वो ड्राइविंग क्रिएटिव इंटरेस्ट नहीं होता ना कि करना तो यही है, पैसे बने ना बने, अभी बने 10 दिन बाद, 10 साल बाद बने, करना तो है, तो यू डोंट हैव दैट पुश. तो तुम्हें अभी भी दिख रहे हैं इस तरह के लोग जिनके अंदर इतना क्रिएटिव इंटेंस वो है पुश इन योर स्टूडेंट्स? बिकॉज तुम्हें तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल रहा है ना. या डू यू थिंक कि अब उसमें थोड़ा एंथुजियाज्म थोड़ा कम हो गया? मैंने इसलिए एडिट वीडियोस करना छोड़ दिया, तो इनकी इंटरेक्शन बच्चों के साथ नहीं हो रही. बट जितनी भी होती ना, बिकॉज दे आर यंग किड्स, 21, 22, 23 साल में उनको पर, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो अभी भी हम मतलब अभी भी पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं, तो वो नहीं होता कि दे हैव टू मूव और दे हैव टू अर्न मनी. तो दे आर मोर इनटू एक्सपेरिमेंट स्टफ. और इसी के साथ में देखोगे आजकल व्लॉग्स आना कम हो गए, वो कुछ और एक्सपेरिमेंट्स के, व्हिच इज अ गुड थिंग कि आप एक्सपेरिमेंट कई चीजों के साथ खेल रहे हैं. सो दैट्स व्हाई आई थिंक फ्यूचर इज वेरी, टिकटॉक इज देयर अल्हम्दुलिल्लाह. तो टिकटॉक में काफी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए है. और बिकॉज आई बिलीव कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद नेगेटिव फर्स्ट एंड देन इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स पॉजिटिव. जब इंटरनेट नया नया आया तो पॉर्न बहुत हिट हो गया था अचानक से, क्योंकि इट वाज अ नेगेटिव थिंग एंड इट अट्रैक्ट्स पीपल. टिकटॉक जब आया, मैंने बहुत खराब एग्जांपल दिया, आई एम सो सॉरी, बट शुरुआत ही ये मैंने किताब में पढ़ा था, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, मतलब मेरे खुद नो, ख्याल नहीं है. हाँ, इट मेक्स सेंस. हाँ, तो जैसे टिकटॉक आया तो लोग कह रहे हैं कि लोग नाच रहे हैं हमारे, भाई दुनिया के सबसे बड़ी फेमस यूट्यूबर जो चार्ली हैं वो भी यही करती हैं. वो तो ये चीज तो है वहां पे. बट देयर इज गुड थिंग एज वेल. मतलब अभी जब हमने मिस एक्सेल की बात की थी, वो आप देखें, लोग भी देखें, तो उन्होंने माशाल्लाह शी हैड हर फर्स्ट 100,000 डे. हाँ. तो वो चीज भी है टिकटॉक पे भी, टिकटॉक पे ये. तो इज द प्लेटफॉर्म एट हाउ यू यूज इट. और अभी लोग जो आते जा रहे हैं वो तो बड़ा अमेजिंग काम करने वाले हैं. एंड हम तो बुढ़े बाबे होने वाले हैं, हो चुके हैं, वाइट बाल भी आ गए. तो वो तो फिर हमारे लिए मसला है. क्रिएटिव स्पेस में तुम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो. हाउ डू यू फील अबाउट पाकिस्तान का ऑनगोइंग क्रिएटिव स्पेस? क्योंकि तुम बेशक खुद व्लॉगिंग नहीं कर रहे, यूट्यूब वीडियोस नहीं बना रहे, बट यू आर अराउंड ऑल दीज पीपल एंड यू हैव बीन अराउंड देम फॉर लाइक 5 साल तो हो गए. तो हाउ हैव यू सीन थिंग्स ग्रो, चेंज, इम्प्रूव, डिग्रेड? वो क्या सीन रहा है तुम्हारा? ये क्रिएटिव इंडस्ट्री पाकिस्तान में जो हमें लगता है वो है, जब हम यूट्यूब की बात कर रहे हैं तो हम बहुत छोटी चीज की बात करें. फिल्में बन रही है, ड्रामे बन रहे हैं, तो क्रिएटिव इज द नेक्स्ट बिग थिंग पाकिस्तान में, अगर आप देखा जाए तो. क्योंकि हमारे ड्रामे तो बचपन से ही, जब से हम पैदा हुए उससे पहले से ही बच्चे चल रहे थे. तो अगर हम सिर्फ यूट्यूब की बात कर रहे हैं तो यूट्यूब का तो स्पेस, मैंने जो यूट्यूबर्स को फॉलो किया है
वो अच्छी बात ये लगी कि हमसे पहले यूट्यूबर जो थे, खैर हमसे पहले तो यूट्यूब भी नहीं था, तो उन्होंने इस चीज को बिजनेस, प्रॉपर बिजनेस किया हुआ है। और जो लोग पहले से टिके रहे ना, वो आज माशाल्लाह अपने बिजनेस लॉन्च करते जा रहे हैं। यूसी इरफान, अभी मैंने समो भाई की स्टोरी देखी, उन्होंने बाउरामी बर्गर लॉन्च किया अभी जस्ट। मैं स्टोरी देख के, जब मैं आया था मैंने स्टोरीज देख रहा था, उन्होंने वो लॉन्च किया, अभी उनका व्लॉग देखना है अभी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पीपल हैव एक्सेप्टिंग देम, नॉट दैट दे आर अर्निंग गुड विद यूट्यूब से अच्छा अच्छा खासा कोई रेवेन्यू आ रहा है, वो इतना है कि दो की रोटी खा सकते हैं। फिर दे आर डूइंग अदर बिजनेस एज वेल। जैसे इरफान ने माशाल्लाह क्रूजिंग लाइन शुरू की है, इरफान ने मेरा कोर्स किया था। समो भाई इज डूइंग अदर स्टफ एज वेल, उन्होंने अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया, बज ऑन है। मुबीन भाई ने कैफे स्टार्ट किया, जुनैद भाई ने स्टोर स्टार्ट किया। तो उन्होंने अपनी फेम को, क्योंकि यूट्यूब पे इतना पे आउट तो है नहीं पाकिस्तान में ना, इंस्टाग्राम पे तो खैर अभी तक ऐड शुरू नहीं हुआ, फेसबुक का थोड़ा बहुत हुआ है, इतना अच्छा पे आउट नहीं है कि आप जो है वो सरवाइव कर सकें विद द फैमिली। सो यहाँ पे ब्रांड्स मौजूद है, बट ब्रांड के साथ भी आप कितना ही कर लेंगे। तो बेसिकली मुझे लगता है यूट्यूबर और क्रिकेटर्स की लाइफ एक जैसी हो जाएगी, शुरू के 20 साल में इतना कमा लो, क्योंकि ये आप आगे नहीं कर सकते। तो बट इट्स अ गुड थिंग। और अच्छी बात ये है कि यंग लोगों के लिए, बच्चों के लिए ये एक रोल मॉडल भी है कि इफ यू स्टे कंसिस्टेंट, नॉट ओनली इन यूट्यूब, अगर आप किसी चीज पे कंसिस्टेंट रहेंगे तो द पे आउट विल इवेंचुअली कम। चीजें जो है वो इट गेट्स बेटर विद टाइम। इसके अलावा फिर क्या तुम्हारा, यू मेंशन्ड एट द स्टार्ट कि तुम खुद पर्सनली अपने आप को एक क्रिएटिव बंदे नहीं समझते, लेकिन तुम्हारा सारा काम, तुम्हारा सारा एक्सपीरियंस हैज बीन इन द क्रिएटिव स्पेस, और तुम बीच में मैंने सुना तुम कुछ पॉडकास्ट वगैरह कभी करना चाह रहे थे इन रिलेशन टू आईटी स्टफ, था या क्या था, कुछ मैंने देखा था। तो पॉडकास्ट वाज तो मैं अभी बीच में मैं इस्लामाबाद गया हुआ था टू शूट सम कोर्सेज ऑफ आईटी स्टफ। आई मेट मुजम्मिल देयर, बेसिकली मैं उसी की जगह पे शूट करता था। मुजम्मिल इनवाइटेड मी टू हिज पॉडकास्ट ना, तो हमने बातें की ऑनलाइन लर्निंग के बारे में, आईटी स्टफ के बारे में। देन आई सेड टू मुजम्मिल कि यार मैंने आपके पॉडकास्ट में सुना था कि आपने एक बार बात की थी उसकी, जो हमारे पास बड़े मशहूर है सेवर फूड्स वाले, लाहौर इस्लामाबाद में, आपने उनकी बात की थी। आई वांट टू हियर मोर ऑफ स्टोरी। बट हमारे यहाँ पे ये है अली भाई कि सक्सेसफुल पीपल डोंट वांट टू शेयर देयर स्टोरी। हाँ वही बात, हाँ could be स्टारवेशन FBR, could मेंटालिटी। be anything else, but we don't hear success stories from Pakistan. हम सब स्टीव जॉब्स को जानते हैं, एक ही चीज जानते हैं कि वो कब इंडिया गया, कब उसने योगा सीखा, कब वो वापस आया, कब वो नंगे पैर चल रहा था, कब उसने अटारी में काम किया, एंड एवरीथिंग। वी नो एवरीथिंग ऑफ बिल गेट्स, वी नो एवरी ऑफ वॉरेन बफेट, बट हमें अपने बारे में नहीं पता। अब स्टोरीज इंडिया से बनने शुरू हो गई हैं कि वहां पे जो है वो जियो किस तरह कंपटीशन को खा रहा है, अमेजोन क्या कर रहा है वहां पे, और फिर उसके जो दूसरे रिलायंस स्मार्ट शुरू हो रहे हैं। अब मुझे ये सब सीखने का बड़ा शौक है, बिकॉज आईटी स्टफ जितना मैं चाह रहा हूँ उतना बड़ा हुआ नहीं है। आई लव टू हियर अबाउट स्टार्टअप्स। मेरी आज तक की फेवरेट फिल्म गुरु है। मैं जब भी डिप्रेस होता हूँ, कंपनी नहीं चलती, तो मैं गुरु देखता हूँ। क्यों? बिकॉज देयर इज अ मोटिवेशन टू इट। तो हमारे यहाँ पे सक्सेस स्टोरीज की कमी है, स्पेशली इन बिजनेस साइड, बिकॉज अगेन वेल्थ मेकिंग इज नॉट कंसिडर्ड गुड हियर। क्या पैसा बनाना इज नॉट द मकसद, पता नहीं क्यों, वो खैर अलग कहानी है। तो आई वांटेड टू हैव स्टोरीज जो कि स्टोरीज से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप की हो। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट, बट फिर वो रुक गया था बिकॉज वी डिडंट हैव द स्पेस, और मेरा घर काफी शहर से दूर है, तो आपने तो देखा होगा। तो वो बड़ा एक कंसर्न होता है लोगों को आने का। तो नाउ दैट वी हैव फिजिकल स्पेस, so I want to start 2 podcasts. The first one is Today I Learned, जिसमें मैं अपने बारे में नए लोगों को बुला रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ उनसे। कि एक बार मैंने इंटरव्यू किया था उसका माइक्रोबायोलॉजी में, कि वो क्या करते हैं माइक्रोबायोलॉजी लोग। और फिर मैंने समूह भाई का बात बुलाया, समूह भाई ने डिस्कस किया था कि वो स्मोकिंग क्यों करते थे, ड्रग्स जो था वो उसको क्यों करते थे, बिकॉज मैंने कभी ड्रग्स नहीं किया था, आई कैन नॉट रिलेट टू इट। एक ये था, और एक है मेरा नया पॉडकास्ट शुरू करने वाला, हाउ डिड दे डू इट, कि उन्होंने कहा कैसी चीजों को। उसमें मैंने बोगो है हमारे पास स्टार्टअप, उनका डिस्कस किया है। BMW का मैंने पॉडकास्ट किया, BMW कलेक्शन से हम कैमरा खरीदते हैं, कि उन्होंने स्टार्ट किस तरह किया। तो इस तरह मैं चाह रहा हूँ कि एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, कि यार ये किस तरह कर रहे हैं चीजें, या अगर इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट किस तरह मिल रही है, सक्सेस स्टोरीज किस तरह है। आई वुड लव टू हैव हमारे रियाज ऑन द पॉडकास्ट कि हाउ डिड ही स्टार्टेड। अब इतने कंट्रोवर्शियल बना दिए गए आपके भी चैनल पे, आसिया के नाम सुन के, बिकॉज वी हैव ऑलवेज बीन, देखो
ये जो हमारे अपना अंबानी साहब है, कि उन्होंने रिश्वत नहीं दी थी? पूरी गुरु फिल्म में ही ये है कि उन्होंने रिश्वत देके आगे चीज बढ़ाई है। तो मलिक रियाज कुछ भी जितना भी नेगेटिव नाम है, कराची का भेंट हम देखें, लाहौर का देखें, इस्लामाबाद का देखें, दुनिया अलग है। तो कुछ तो उस बंदे ने ठीक किया होगा। हाँ आई नहीं वांट टू हियर द स्टोरी, आई वांट टू हियर द स्टोरी ऑफ बर्गर लैब, बर्गर क्लॉक, जो इतना हमारा सक्सेसफुल स्टार्टअप हो रहे हैं। आई वांट टू हियर स्टोरीज ऑफ एंगल कितना बड़ा हो गया। अच्छा, if you want a तो connection with Burger Lab तो मुझे बता देना, I know those people, है ना? unless you know them yourself. But हाँ, We पाकिस्तान में I did the think interview with him for the burger story of Karachi. oh पाकिस्तान में सक्सेस, स्पेशली बिजनेस रिलेटेड सक्सेस जो है ना, उसमें इसलिए भी लोग थोड़ा हिचकिचाते होंगे क्योंकि हमारा यही, जैसे तुमने रेफरेंस किया, हमारा थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज अ बिट फ्लूइड। तो ये ना हो ना कि हमने आपके शो पे आके ये बात कर दी। पहली बात तो ये कि आप हैं कौन, मैं आपको टाइम क्यों दूं, पहला तो हर्डल ये होगा। फिर अगर वो आ भी गए, बात कर Very ली, valid question. हाँ बात कर भी ली, तो फिर ये ना हो कि सवाल कहाँ कहाँ से उठ के आ रहे हैं। बिकॉज बहुत सारे मीडिया रिलेटेड और इस तरह स्पेशली इंफॉर्मेशन रिलेटेड थिंग्स में देयर इज अ लॉट ऑफ हॉस्टाइल एनर्जी। मतलब पॉलिटिक्स में भी मेरा मेन एग्जांपल जो था, और मैं और काजी इस बारे में अक्सर बात करते हैं कि अगर हमें कुछ करना है ना, तो हमें गॉसिप और ये सनसनीखेज वाइब्स से दूर रहना है, जो कि हमारे टीवी पे, न्यूज चैनल्स वगैरह पे सारे, बिकॉज देयर इज नो कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट टू इट। बट वही बात है ना कि दैट इज द स्टैंडर्ड, और अवाम को भी उसी चीज की आदत है, पार्टिसिपेंट्स को भी उसी चीज की आदत है। तो ब्रिंगिंग देम ओवर टू दिस डायरेक्शन इज अ बिग चैलेंज। और तो अगर आई आप किसी वंडर। को भी राह चलते पूछो कि यार अपना, कोई भी बंदा कैमरा मैन ने पूछो कि आपकी कितनी इनकम है, तो वो कहते हैं "बस अल्लाह का शुक्र है"। तो वो जो चीज है ना कि आप, ऑफ कोर्स अभी आप मुझसे पूछोगे, मैं बस बस पेट हाँ। 2 बरकी रोटी खा लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है। बिकॉज हमें वो कॉन्सेप्ट ही नहीं सिखाया गया ना कि वी शुड शेयर। मैं हाँ। बाहर के यूट्यूबर्स में देखता हूँ, अली अब्दाल हैं और काफी यूट्यूबर जो अपनी पूरी इनकम दिखा देते कि भाई यप। मैंने ये कमाया, ये कमाया, ये कमाया। प्रॉब्लली वहां पे चोरियां नहीं होती या फिर हाँ रात नहीं, चलते हुए ऑल्सो वो। मतलब हिस्टोरिकली हमारा रीजन भी तो इज नॉट एफ्लुएंट रीजन ना, तो मतलब हमारे पास वो स्टारवेशन मेंटालिटी का एक बेसिस भी है कि मतलब यहाँ लोग हमेशा से अमीर नहीं है। तो यू कांट बी रिलैक्स्ड कि हाँ ब्रो, मतलब 1.5-2 मिलियन तो हो ही गए थे इस साल। अच्छा, यूट्यूब से, यूट्यूब पे तो कुछ करना ही नहीं होता, तुम यूट्यूब से कमा लो, नौकरी करके देख लो, तुमने भी तो सीए किया है, सीए ही कर लेते यार, ये तुम किस चीज में लग गए, पैसे तो सही होते हैं, इस तरह की बातें। बट अच्छा, तो फिर व्हाट इज देयर एनीथिंग इन द फ्यूचर? हमने आईटी स्टफ के फ्यूचर के बारे में बात कर ली, स्पेस के प्लान्स के बात कर ली, और पॉडकास्ट के बस बारे में बात फ्यूचर कर ये ली। है कि वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड हाँ। कि चीजें थोड़ी बेहतर हो जाए। along with the platform we have to work in harmony with other edtech companies to get this culture going, कि पढ़ना है, पढ़ाना है। हम्म। एंड आई डोंट थिंक आई हैव कि इतने गोल्स हो कि अनरियलिस्टिक हो आईटी स्टफ के लिए। लेकिन बस यही कि अगले साल हमारे कुछ पोर्शन से बढ़ जाए, जो हमने गलतियां की हैं वो गलतियां ना हो। वी हैव सम मोर पीपल ऑन बोर्ड फॉर द गुड कोर्सेज, नंबर ऑफ कोर्सेज। दैट्स इट। हाउ इतनी फार एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बट फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, दैट आई कैन से। हाउ फार अहेड आर यू थिंकिंग? 6 महीने, एक सॉरी? साल? तुम्हारा प्लान अभी आगे का कितना है? डू यू हैव लाइक अ 6 मंथ प्लान, अ 1 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान? सोच कहाँ तक गई है अभी तक? यू डोंट हैव टू टेल मी अली व्हाट द भाई, प्लान इज। मेरा एक गोल है कि आई वांट टू हैव अ यूनिवर्सिटी। तो वो जब तक नहीं होता तब तक तो फिर हम करते रहेंगे हसल। अल्लाह करे कि वो एक हाँ। हो जाए, प्रॉमिस फिल, अनलेस आई मूव आउट ऑफ पाकिस्तान। हाँ। अच्छा। एकदम से। अच्छा, चलो। आई थिंक आई विल, अच्छा ये बात मैं रिकॉर्डिंग की बात करता हूँ। लास्ट क्वेश्चन दैट यू माइट बी अवेयर ऑफ, बट क्यों पूछना लास्ट? आई लाजिम एम है। एंजॉयिंग इट। हाँ वो मैं बता रहा हूँ, विल डू दिस अगेन आई थिंक सूनर देन यू एक्सपेक्ट। लेकिन एनी जिन स्टोरीज? सॉरी, व्हिच स्टोरीज? जिन स्टोरीज? नहीं, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट द हॉरर स्टफ। अभी नन? आपको 12:30 बज रहे हैं, मेरे पीछे अंधेरा है, तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। अच्छा, तुम्हारे पास स्टोरीज हैं, बताओगे नहीं?
Yes, I don't discuss. अगर आपने वो देखा हो, कुन मरीर की वीडियो देखी हो, so I am not into horror stories because I am a very क्या कहते हैं, बहुत डरावा बच्चा हूँ मैं. सही, that's fine. एक स्टोरी मैं शेयर करूंगा. Okay. हम लोग जब स्कूल में थे, मतलब वो हॉरर नहीं है, जस्ट हाँ, मुझे and बहुत साल बाद रियलाइज हुआ कि हम क्या कर रहे थे. हम जब बच्चे थे, स्कूल में थे, क्लास 2, 3, 4 में, तो हमारे स्कूल में बहुत बड़ा ग्राउंड हुआ करता था, एंड देन अक्रॉस द ग्राउंड देयर वर सम ट्रीज. हाँ, वो ऑफ कोर्स स्कूल की बाउंड्रीज में थे, बट सिंस वी वर किड्स तो वो बहुत दूर लगता था. क्या वो, हाँ, फिर अब बच्चे कहते थे कि वहां मत जाना, वहां काली माँ रहती है. अब मैं जब बोलूं डर लग रहा है पीछे से कोई आ ना जाए. मैट्रिक किया, सब कुछ किया, वो काली माँ वहीं पे बच्चे ऐसे बात करते. अभी कुछ महीनों पहले मैंने रियलाइज किया कि जब ये काली माँ का जब जिक्र हो रहा था, तो उस वक्त मैं था कोई 4वीं जमात में. उस वक्त चला था 1995. उस वक्त फिल्म आई थी करण अर्जुन. उसमें काली माँ थी, जो कि बड़ा ड्रामा दिखा गया था. तो शायद उस बच्चे ने शायद अपने घर पे देखी होगी मूवी करण अर्जुन. हमारे घर में तो था नहीं सैटेलाइट वगैरह, वीसीआर था नहीं. तो उसने ऐसे किसी बच्चे ने रूमर फैलाया काली माँ का, और तब से उसने वहां पे कुछ चल रही होगी काली माँ. सही बात है, सही बात है. नहीं, बाकी तो अगर आपने कभी हॉरर स्टोरीज की बात करनी हो तो मेक श्योर यू डोंट इनवाइट मी, बिकॉज़ आई डोंट एंजॉय इट. सही सही, ठीक है. आई सपोज इस पे फिर आखिरी सवाल फिर ये बनता है, एक्चुअल आखिरी सवाल, कि what do you think what do you think is the lesson people think you've learned, and what is the actual lesson that you might have learned इतनी सारी मेहनत के बाद? Trick question. What lesson that I have learned? तो ये मैं कह सकता हूँ, पीपल ने सीखा होगा कि यार हार्ड वर्क इज ऑलवेज एवरीथिंग. बट अब चूंकि मैंने जो है वो किताबें पढ़ने शुरू कर दी है, तो हार्ड वर्क आई बीन ऑलवेज पुटिंग इट आउट, क्या लोगों को मेरा काम थी करना ऑलवेज. बट हार्ड वर्क इज नॉट इन एवरीथिंग. आप जब चीजें करने शुरू करते हैं, तो आपको हार्ड वर्क के साथ थोड़ी सी आपको स्मार्टनेस भी दिखानी पड़ती है चीजों के लिए, कि यार अगर मैं चीज को ये कर लूँ, मैं पिछले कुछ साल से कुछ चीज गलत करते आ रहा हूँ. या आई डोंट थिंक आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन, बड़ा एब्स्ट्रैक्ट जवाब दे रहा है, बट बड़ा स्पॉन्टेनियस सवाल है. आप ये पॉडकास्ट सॉरी सवाल नेक्स्ट सवाल पॉडकास्ट में कीजिए, मैं प्रिपेयर करके आऊंगा. नहीं, आई थिंक दिस इज द आंसर, क्योंकि वो वाली बात है ना कि सबसे बड़ी मतलब इट्स बेसिकली नॉट के व्हाट पीपल माइट हैव थॉट. बेसिकली ये होगा कि लोगों के कंसेप्शन क्या होगा कि इसने ये किया तो इतनी तरक्की हुई, बट यू हु हैव बीन इन इट नो के सब ये सोच रहे होंगे हाँ भाई मेहनत करते रहो और थिंग्स विल वर्क आउट, कुछ भी हो जाए. बट यू हैव टू यू नो प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स. ये तुमने जो नेटवर्किंग वगैरह वाला काम किया है, दिस इज नॉट डायरेक्टली आमिर भगत के फायदे में. इससे आमिर भगत को फायदा हुआ आगे जाके, बट व्हेन आमिर भगत वाज मेकिंग दोस डिसीजंस, ही वाजंट लुकिंग आउट फॉर हिमसेल्फ एट द टाइम. वो इसलिए कनेक्शंस नहीं कर रहे थे कि आगे जाके शायद मेरा कोई काम हो जाए, बट यू नो यू वर वर्किंग विद अ मोर प्योर इंटेंशन and looking for the most efficient solutions to something. And वो efficiency जो है अगर तुम करते थे, हाँ bro तुम करते रहो, figure it out yourselves, I think you would not have been as successful as you are. Do you think that's fair? हाँ, बिकॉज मेरा हमेशा से ये था कि जो चीज मेरे पास नहीं है ना, वो आई वाज ऑलवेज क्यूरियस कि मेरे पास क्यों नहीं है. जब मेरे पास वो चीजें होनी शुरू हुई ना, तो आई मेक श्योर कि लोगों के पास भी वो चीज हो. फॉर एग्जांपल, इफ आई हैड द एक्सेस टू इरफान, so why should I only have the access to Irfan or Muru bhai or Hamza or to the knowledge? Let's spread this knowledge. So Airbnb जब सामने आ गए, फिर जो कोर्सेज हम बना रहे थे, तो why should only I have the knowledge? Let's spread it out. So वो तो फाइनेंशियल गेन आ गया. Then I started doing director's commentary with Muru bhai and all those stuff. तो Muru bhai की यशपट की जो वीडियो बनाई थी, बड़ी अमेजिंग वीडियो, उनकी बहुत डिटेल उन्होंने ब्रेकडाउन दिया हुआ है कि ये शॉट ने यहाँ क्यों लगाया, ये शॉट यहाँ क्यों लगाया. We shouldn't listen कि लोग नहीं देखते इतना, बट वो चीज मेरे साथ क्यों रहे, चीज मैं क्यों आगे सीखूं. लेट इट बी पब्लिक. तो द स्पेस की एग्जांपल है कि अगर मेरे पास एक चीज है, तो व्हाई शुड ओनली आई यूज इट. लेट्स मेक इट पब्लिक एंड लेट एवरीवन मेक इट यूज इट. तो यही है कि मेरी लर्निंग ये है कि अगर मेरे पास अभी कुछ नहीं है, तो जब वो होगा तो आई विल नॉट बी हेजिटेंट टू शेयर इट. I think that's a good
good place to end this first discussion. Where should people go to find your work? Where should they go? Instagram, They should YouTube, go on my website. Instagram. There's a YouTube channel of Amir Bhagat. There's a YouTube channel of IT stuff. There's IT stuff on net, and there are courses there. Please buy them. हाँ, सारे links नीचे सब आपको मिल जाएंगी. And I think ठीक है. Amir Bhagat, thank you very much for your time. It was lovely for your first appearance. I hope हमने कोई ऐसी अहम बात जो तुम्हें डिस्कस करनी थी या तुमने सोचा था हम बात करेंगे and we didn't. नहीं, I don't think so. Okay, फिर नहीं, I always ask कि कहीं मैं ना भूल जाऊँ. ठीक है जी. Thank you for watching, listening. I hope you've made it this far. Links to everything are below. All over Twitter, Instagram, all the links. ठीक है जी.